A blissful morning to one and all present here. It's my absolute pleasure to extend a hearty welcome to each one of you present here in today's 5-hour in-house training program on the topic Importance of Physical Fitness and Child Development. We are thrilled to witness such enthusiastic participants and a highly learning audience gathered to deepen their understanding on this significant topic. Today's seminar aims to bring light to various aspects associated with the topic, thereby sparkling thoughtful discussion and stimulating new ideas. Today, we have with us our two very knowledgeable resource persons. Firstly, we have Rajiv Gupta sir and Saurabh Maharaj sir. They will be providing us insight on most important topics. That is, firstly, importance of physical fitness. You all might have witnessed this thing that when you are not fit, you are not ready to learn or not at all ready to do any sort of work, right? A healthy body is really required for each and every individual. So, physically being fit is really important for an individual. Secondly, we will be seeing the most important thing, how we can develop and help the children in growing, right? So, I request Saurabh Maharaj sir to please come forward and Rajiv Gupta sir also, and start today's session by lighting up the lamp. I request everyone to please stand up for the same. I request Anjani ma'am to please come forward for the light lamping ceremony. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। दीदी सरस्वती वंदना।
दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा। साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। रागी रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वाली ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तेरी कृपा से गला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, रंग खिले तस्वीरों में। तू सरसंगी जीवन करती, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में। जग में ऊंचा नाम रहे माँ, इतनी ड्यूटी लगा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा
कंठ बसो हे मातु शारदे, मीठे बोल सिखा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। Thank you, sir. You are requested to sit down, please. Now I request our first resource person, Saurabh Maharaj sir, to please come forward and start today's session. I hand over the mic to Saurabh sir. Thank you, ma'am. A very warm welcome to one and all present here. This is Saurabh Maharaj standing here in front of you, all STEAM teachers, to conduct one-day training program on the topic Importance of Physical Fitness. First of all, I would like to put forward my gratitude towards our principal sir, the Anupam Nayak, for giving me this opportunity and finding me as for conducting this program. Now, without taking much of your time, I will start right away with the session. Now we start importance of physical fitness. So, what is the meaning of physical fitness? Physical fitness से हम क्या समझते हैं? Is we think क्या हम समझते हैं कि फिजिकल फिटनेस से हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? क्या हम लोगों को लगता है कि हम लोग फिजिकली फिट हैं, एक हेल्दी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है. I don't know what about you. Actually, what is the meaning of physical fitness and how it is effect on a healthy person? Physical fitness or healthy person. Healthy person means physical, mental and social well-being. Physical fitness just enhance these property of healthy person or healthy life. So मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी खड़े हो जाएं. या मैम, सभी मैं चाहता हूं सभी रिलैक्स हो जाएं. मेरे लिए भी सभी लोग रिलैक्स हो जाएं. एक प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 5 टाइम्स इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. सभी कोई करते हैं? Now, how do you feel? कैसा लग रहा आपको? रिलैक्स. आप समझिए कि हम लोग एक बर्गर के पेड़ के नीचे खड़े हैं. मतलब बैठ जा सकते हैं आप लोग और अपने सारे परेशानियों को, सारे मेंटल प्रॉब्लम को, फिजिकल प्रॉब्लम को और सोशल प्रॉब्लम को भूल जाए कुछ समय के लिए. क्योंकि ये जो टॉपिक है हम लोगों का फिजिकल फिटनेस, ये सभी पे डिपेंड करता है कि आप अपने सोशल लाइफ को कैसे जी रहे हैं, मेंटल लाइफ को कैसे जी रहे हैं और फिजिकल लाइफ को कैसे जी रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारा? आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर physical activity among youth. Describe the key physical activity guidelines for children and adolescents. Describe the role of school in partnership with the families, communities in promoting physical activity among children and adolescents.
फिजिकल एक्टिविटीज है जो वो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करता है। वो एक्टिविटी क्या है थोड़ा देखते हैं। व्हाट टू एंड फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल जाता है पैदल, फिर पैदल रिटर्न घर को आता है। जंप रोप्स एंड डज जिम्नास्टिक्स इन फिजिकल एजुकेशन क्लास, रोप जंप करना, जिम्नास्टिक। प्ले ऑन द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग जंप रोप डज जिम्नास्टिक इन फिजिकल एजुकेशन क्लास। तो ये सारा एक्टिविटी वो कॉलिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्ले ऑन द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस, फ्री टाइम में या ब्रेक टाइम में वो प्लेग्राउंड में गेम्स खेलता है। डज होमवर्क, वॉच टेलीविजन, प्लेइंग सॉसेस विद द फैमिली, अपने परिवार के साथ फुटबॉल खेलना, प्ले वीडियो गेम्स। तो these are the activity which Collins perform daily as a physical activity. What are the benefits of physical activity? So first, promote health and fitness. It increase our mental health, physical health as well as social health and fitness. Build healthy bones and muscles. Reduce the risk of developing obesity. आज का जो फास्ट लाइफ है हमारे लाइफ में, मोटापा बहुत ही कॉमन चीज है। हम लोग फास्ट फूड और फास्ट फूड पे ज्यादा प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, बट ये हम लोग के लिए नुकसान है। तो हम लोग को फिजिकल, हमारा आज के समय में जो हम लोग भोजन करते हैं वो भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है हम लोगों को। सो हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए सभी लोगों के लिए। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज टाइप्स ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। दीज आर द कॉमन डिजीज, ये बहुत कॉमन हो गया है। डायबिटीज होना, हार्ट डिजीज होना बहुत ही कॉमन हो गया है आज के समय में। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज हमारा लाइफ इतना फास्ट हो गया है कि हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, और सारा डिजीज है जो इसकी वजह से होता है। मोस्ट कॉमन एक और डिजीज का मैं नाम लेना चाहता हूं, वो है आपका थायराइड। बहुत कॉमन हो गया आज के समय में। तो इस तरह का जो डिजीज है जो हमारे फिजिकल फिटनेस को हैम्पर करता है, तो हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये बहुत बड़ा चीज है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो हमारे लाइफ में डिप्रेशन से काफी हद तक डिप्रेशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं जानता हूँ सबके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, बट उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? तो फिजिकल एक्सरसाइज करके, ठीक है। नेक्स्ट, कैन पॉजिटिवली इफेक्ट द कंसंट्रेशन मेमोरी एंड क्लासरूम बिहेवियर। अगर बात करें कि हाँ ये सब चीजों से मेंटल फिटनेस अच्छा रहता है, जिसकी वजह से अगर बोले तो हमारा मेमोरी पावर, मेमोरी शार्प होता है और रिटेंशन भी बहुत अच्छा रहता है। ये इफेक्ट करता है हमारे लाइफ को। नेक्स्ट, व्हाट इज एरोबिक एक्टिविटीज? सो एरोबिक एक्टिविटीज से हम क्या समझते हैं? सो बेसिकली एरोबिक एक्टिविटीज ऐसा एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। हमारे हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को ये फास्ट करता है एरोबिक एक्टिविटीज। तो इसमें बहुत सारा एक्टिविटीज हो सकता है ये एरोबिक एक्टिविटीज में। पहले फॉर एग्जांपल जंपिंग, रनिंग, स्किपिंग, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज। देखिए बेसिकली दो तरह का एरोबिक एक्टिविटी होता है, एक मॉडरेट एक्टिविटी, मॉडरेट इंटेंसिटी और वैगरस इंटेंसिटी। अब क्या इन दोनों में डिफरेंस है मैं एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद बताऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कुछ लोग मेरे पास आए जो मैं
एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। सर आप लोग आए? कोई याद नहीं सर, आप आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लोर पे कुछ पैटर्न बना हुआ है, एक प्लेन है और एक zigzag पैटर्न कुछ बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप लोग पैटर्न डिसाइड करके उस पे खड़े हो जाए। अब आप लोग को मैं बोलूंगा, आप लोगों को जंप करना है। जैसे 1 बोलूंगा तो 1 टाइम्स जंप करना है, 2 बोलूंगा 2 टाइम्स जंप करना है, 3 बोलूंगा 3 टाइम्स जंप करना है। सेम पैटर्न पे जंप करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस जंप करना है, ठीक है। अब नई प्लेस पे 1 बोलूंगा 1 टाइम्स जंप, 2 बोलूंगा 2 टाइम्स जंप, 3 बोलूंगा 3 टाइम्स जंप, ठीक है। दैट्स ऑल। सो स्टार्ट करिए एक्टिविटी। 1 2 3 1 2 2 3 That's all. आप लोग अपनी जगह पे खड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या इस एक्टिविटी के बाद आपके हार्ट रेट में कोई इफेक्ट पड़ा क्या? Means that means, ma'am, can you explain? हमारा हार्ट रेट बढ़ गया और कुछ चेंज? और वो ज्यादा तेजी से मतलब वो बीट कर रहे हैं। थैंक यू मैम। और कोई मैम आप लोगों ने जुड़े? So now this activity, so the aerobic activities, these activities belongs to aerobic activity। ये aerobic activity था, ठीक है। इस aerobic activity में हमने क्या देखा, हमारा हार्ट रेट और ब्रीथ रेट बढ़ गया। तो जो एरोबिक एक्टिविटीज में है, जो दो भाग में बांटा गया था एरोबिक एक्टिविटीज को, एक मॉडरेट था और एक वेगरस। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि जब ये हार्ट रेट को बहुत ज्यादा लेवल तक नहीं बढ़ाता, मींस हमारा जो वर्कआउट रेट है या एक्टिव जो हम लोग परफॉर्म किए यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा स्पीड और इंटेंस ना हो, तो वो मॉडरेट एक्टिविटी कहलाता है। जैसे मैंने 1 बोला 1 बार जंप, 2 बोला 2 बार जंप, 2 टाइम्स जंप, 3 टाइम्स जंप। तो जब मैंने 3 बोला तो आप लोगों ने 3 टाइम्स जंप किया। दिस एक्टिविटी बिलोंग्स टू वेगरस एक्टिविटी। मैंने एक बार आपको बोला कि 1 टाइम्स जंप करवा, वो था मॉडरेट एक्टिविटी, ठीक है। These are the types of aerobic activity. So aerobic activity, most of the 60 or more minutes per day, we should perform at least 60 or more minutes. This exercise, aerobic activity, should be either moderate or vigorous. Aerobic physical activity means vigorous intensity. Aerobic physical activity, indulge vigorous intense physical activity at least 3 per day. Means at least we should perform moderate activity or vigorous or intense activity. Muscle strengthening activity include muscle strengthening physical activity on at least 3 days of a week. Means these are the norms we should perform. These norms means to enhance our physical fitness, we should perform these activities.
in a week. 20 minutes per day in a week. Next, bone strengthening activity. These also perform 3 day in a week, means 60 minutes in a week. That means one day 20 minutes, means per day you have to perform 20 minutes for bone strengthening activity. Next, one more activity. आप लोगों के पास पेपर है? आप लोगों के पास सभी के पास पेपर होगा? सभी लोग अपने पेपर में रूटीन के हिसाब से जो फिजिकल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं उसको लिखिए। मैं आपको उसके लिए 10 मिनट्स टाइम 5 मिनट्स टाइम देता हूँ। आप लोग लिखिए उस एक्टिविटीज को जो आप लोग डेली बेसिस पे करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज। आप लोग सभी कर रहे हैं। आप एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आप कर रहे हैं। वेरी गुड। मुझे लगता है सभी लोग कंप्लीट कर चुके होंगे इस चीज को। सो मैम, आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा? At least 20 minutes morning walk every day, 10 minutes jumping and skipping. Okay ma'am, very good. Next, ma'am. Food in 3,000 body.
10,000 steps. Mostly skip my dear Ahmed. And 2,500 to 3,000 rope jump per day. After that, plank squat, 6 exercises per day. That is 5. Thank you, ma'am. मैम आप लोग मैं 2 एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ। मॉर्निंग में स्किपिंग 150 एंड 200 टाइम्स एंड रात में खाने के बाद वज्रासन। थैंक यू मैम। रेगुलर स्टेज पर आना जाना, जब लाइट नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं होता, गार्ड नहीं है तो अप्रॉक्स 90 स्टेज को चढ़ के टॉप फ्लोर पर बैठने जाना, ये पर डे का हो जाता है। स्कूल में भी स्टेज पर आना जाना क्लासेस के लिए करते हैं। और इसके अलावा जो हम पर्सनली करते हैं उसमें होता है हमारा हैंड एक्सरसाइज, जिसमें क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज हाथों के कई मूवमेंट में 5 एक्सरसाइज करते हैं। एंड मंडूक आसन एक पर्टिकुलर स्टेज पर पर्टिकुलर प्लेस पर किया जाता है। दैट इज बेनिफिशियल फॉर माय हेल्थ। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। Now हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपना। So hope you understand moderate intensity activity and vigorous intense activity. आप लोग सभी समझ गए होंगे कि ये moderate intensity activity और vigorous intense activity क्या है। Next slide. So types of moderate and vigorous intensity aerobic activities. तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। मॉडरेट इंटेंस एरोबिक में हम क्या करते हैं, बच्चे अगर हैं, चिल्ड्रन है, तो एक्टिव रिक्रिएशन सच एज हाइकिंग, स्केटबोर्ड, रोलर ब्लेडिंग, बाइसाइकिल राइडिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। नाउ अब ये हाइकिंग क्या है? आप लोगों ने सुना है व्हाट इज हाइकिंग? एग्जैक्टली व्हाट इज हाइकिंग? वेरी गुड मैम। तो हाइकिंग एक्चुअली होता है क्या? जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होंगे उसको हाइकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड आप सभी कोई जानते हैं, एक बोर्ड रहता है उसके ऊपर स्केटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है रोलर ब्लेडिंग, बाइसाइकिल राइडिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग भी सभी को पता होगा क्या होता है, और ये कॉमन है। बाउंड्री पर चल रहा होता है, मतलब जो रोप एक्चुअली ये एक एक्रोबैट टाइप्स है। ये एक्टिविटी एक एक्रोबैट टाइप्स है। रोप पे चलना ना एक्रोबैट टाइप्स है। उसी तरह का ये भी एक्टिविटी है ब्रिक्स पे। जो बाउंड्री होता है ना, बच्चे लोग देखते हैं ना बाउंड्री पे चलते हैं ना, वो वाला वो एक्टिविटीज होता है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क वॉकिंग। नेक्स्ट एडोलेसेंस में ये क्या होता है, ये एक्टिविटीज एक्टिव रिक्रिएशन सच एज कैनोइंग, बाइकिंग, स्केटबोर्ड, रोलर ब्लेडिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, बाइसाइकिल राइडिंग, स्टेशनरी और रोड बाइक, हाउस वर्क एंड यार्ड वर्क सच एज स्वीपिंग और पुशिंग a lawn mower, game that requires catching and throwing such as baseball and softball. So these are the activities which performed by adolescents. This adolescence में ये activities थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है? जैसे for example sweeping, झाड़ू लगाना, pushing a lawn, साफ सफाई करने के terms में है ये, ठीक है? और catching ball को throw करना, catch करना, for example जैसे बेसबॉल है, ठीक है? सॉफ्टबॉल से कैच प्रैक्टिस भी बच्चे करते हैं, तो वो सारा एक्टिविटीज इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है, ये तो मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज हो जाता है जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स परफॉर्म करते हैं। बट
वेगरस इंटेंस एरोबिक एक्टिविटीज क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी गेम्स इन्वॉल्व चिल्ड्रन में होता है ये एक्टिविटी गेम्स इन्वॉल्विंग रनिंग एंड चेजिंग सच एज टैग, bicycle riding, jumping rope, martial arts such as karate, running, sports such as soccer, ice or field, hockey, basketball, swimming, tennis, cross country skiing। तो देखिए बेसिकली क्या है, बाइसाइकिल राइडिंग, जंपिंग रोप को जंप करना, स्किपिंग आ जाता है। स्किपिंग सभी लोग जानते हैं, आप लोग स्किपिंग मैम, स्किपिंग एक्सप्लेन स्किपिंग। Skipping is done by jumping by the help of rope। And what are the benefits of skipping ma'am? reduce your weight or height. Reduce our weight and increase our height. These are the benefits of skipping. Sports such as soccer, ice or field, ये भी डिफरेंट टाइप्स का गेम है, जो कि अगर बात करें फुटबॉल खेलते हैं हम लोग, फील्ड पे भी खेलते हैं, आइस पे भी खेलते हैं, बर्फ के वाली जगह पे भी फुटबॉल को खेला जाता है। नेक्स्ट, एडोलेसेंट में ये एक्टिविटीज किस तरह का होता है? एक्टिविटी गेम्स इन्वॉल्व रनिंग एंड चेजिंग सच एज फ्लैग फुटबॉल, बाइसाइकिल राइडिंग, jumping rope, martial arts such as karate, running, sports such as soccer, ice or field, hockey, basketball, swimming, tennis, vigorous dancing, cross country skiing. So these are the activity which performed by adolescent as vigorous, intense aerobic activity. What does this really mean? At least 60 minutes every day, mostly aerobic activities at variety and fun. So what does this really mean? What is the meaning of this aerobic? Means how these aerobic activity enhance our life. कैसे ये हमारे लाइफ को अच्छा करता है? तो अगर मैं बोलूं कि 60 मिनट कम से कम ये एरोबिक एक्टिविटी सबको करना ही चाहिए। हमारा लाइफ बहुत फास्ट है, मैं जानता हूं कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जाकर के जिम में जाएं, जिम करें, अपने वेट को रिड्यूस करें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत हेक्टिक है लाइफ। बट ये प्रोसेस हम कर सकते हैं, एरोबिक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। इस एरोबिक एक्टिविटी के परफॉर्म करने की वजह से हमारा एक तो हमारा हार्ट रेट अच्छा रहेगा, हार्ट डिजीज होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये एरोबिक एक्टिविटीज करने से ये फायदा है। नेक्स्ट, ओबेसिटी का शिकायत नहीं रहेगा, मोटापा का शिकायत नहीं रहेगा इससे। तो एटलीस्ट एरोबिक एक्टिविटी तो हम कर ही सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है? जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारा एक्टिविटी तो ये हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है हम लोगों के लिए। और बोन स्ट्रेंथनिंग और मसल तो ये हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ हैक्टिक है। तो ये एक्चुअली हम फिजिकली फिट रहने के लिए ये एक्टिविटी कर सकते हैं। What are muscle strengthening activities? So what are the muscle strengthening activities? Muscle strengthening activities are the activities which increase our muscle. हमारा मसल्स को ये बढ़ाता है। What are the muscle strengthening activities? Climbing tree, playing tug of war, पेड़ पे चढ़ना। tug of war आप लोगों ने देखा? tug of war में दो टीम होते हैं, एक रोप होता है
भी वहां रहता है, वो वाला पार्ट अगर जिसके एंड में जाता है और बीच में बाउंड्री सेट कर दिया जाता है, तो वो वाला पार्ट अगर जिस एंड में जाता है मींस उस बाउंड्री को अगर क्रॉस करता है, वो वाला पार्ट जो हम सेटअप किए हैं, तो वो जो होता है वो जो विनर टीम वो जीत जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि so activity that can structure push up, pull up, working with resistance band, lifting weight. पुश अप आप लोग सभी जानते हैं, बॉडी को पुश करना रहता है, इसमें पुल अप बॉडी को टांगना रहता है, पुल करना रहता है। नेक्स्ट है वर्किंग विद रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड ये क्या होता है? ये रेजिस्टेंस बैंड क्या होता है? Good morning, teachers. It's a kind of elastic band, a rope kind of thing with loops on the end, either for pulling out the leg muscles, the thigh muscles, or the arm muscles. They are used for stretching our body because in normal course we do not stretch our body, which creates extra fat in those joints, and because of which when we do any activity, we feel a lot of pain. So those bands are for stretching our body to the full. We just put in our legs or hands and then we stretch to the. That is called the resistance band. I think. थैंक यू मैम, वेरी गुड, सही है। रेजिस्टेंस बैंड वही होता है। आप लोगों को देखना है रेजिस्टेंस बैंड होता क्या है? वॉइस आपका आ नहीं रहा है। थोड़ा लाउड से लाउड। मैं दिखाता हूँ आपको। प्लीज कोई एक हेल्प करने के लिए मेरा यहाँ पे आ जाए, आप लोगों में से कोई भी। Thank you, ma'am. This is the resistance band. ये resistance band होता है जो मैम ने बताया। तो प्लीज मैम देखिए क्या होता है। We can just ask our sports teacher to come and explain like one time exercise. She is not here. मैम कुछ परफॉर्म करके दिखा रही हैं, प्लीज क्लैप योर हैंड्स। So supporting like this. प्लीज क्लैप योर हैंड्स। वेरी गुड मैम। प्लीज क्लैप योर हैंड्स। This is the
रेजिस्टेंस बैंड, लिफ्टिंग वेट। तो लिफ्टिंग वेट, हैव यू सीन लिफ्टिंग वेट? आप लोगों ने देखा लिफ्टिंग वेट के बारे में कोई कुछ जानते हैं मैम? Good morning, teachers. Once again, lifting weight is, I think, sir, again a very good exercise wherein student of sports or other stream of sports and games, they lift weight to increase the body power. It improves the muscle mass in their biceps and triceps and around their ab area, abdomen area. Now it can be through various equipments like dumbbells are there. We also have that gym balls, heavy balls which they use around their body and give it to other partner, and the partner again pushes it this way. So the lifting weight is very important for one who is doing sports like they are lifting weight in national or international games, or somewhere in games. Many games require body power, wrestling also. So lifting weight is very important. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Please clap for ma'am. Types of muscles strengthening activity. Muscles strengthening activities includes in children games such as tug of war, moderate push-up with knee on floor. What is its mean? It means जब ये पुशअप करते हैं ना, तो नी जो होता है वो ग्राउंड से टच किया हुआ रहता है और बॉडी को अपने हम पुश करके सरफेस की तरफ ले जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं नी पुशअप। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यूजिंग बॉडी वेट और रेजिस्टेंस बैंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस बैंड। आप लोगों को समझ में आ गया रेजिस्टेंस बैंड क्या होता है? नेक्स्ट, रोप और फ्री क्लाइंबिंग। नेक्स्ट, सिट अप, कर्ल अप और क्रंचेस। सिट अप, कर्ल अप और सिट अप इज अ टाइप्स ऑफ आल्सो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। सिट अप में होता क्या है कि हम अपने बॉडी को फ्लोर और सरफेस पे पूरी तरह से सरफेस पे लीन हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, जस्ट अपने आप को पैर की तरफ उठाना रहता है, पैर की तरफ अपने आप को पुश करना रहता है। तो ये जो होता है ये सिट अप में आता है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, कर्ल अप और क्रंचेस। तो एक साइड होता है और एक होता है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। साइड को क्या आपका लोअर फैट को कम करता है और दोनों लोअर फैट को साइड क्रंचेस कम करता है, ठीक है। और अपर जो होता है वो मिडिल पोर्शन का जो फैट होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट, स्विमिंग ऑन प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स बार। Swimming is also a process for we perform for children. Adolescents, games such as tug of war, push-up and pull-up, resistance exercise with exercise band, weight machine, hand-held weight, climbing wall, sit-up, curl-up और crunches. Next, this means ये adolescents को perform करना चाहिए। Children से थोड़ा टफ होता है, तो लोगों को ये परफॉर्म करना चाहिए। तो व्हाट आर बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज? क्या क्या हो सकता है? द एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द बोन्स दैट प्रमोट्स बोन ग्रोथ स्ट्रेंथ सच एज जंपिंग। मींस जो कि हमारा बोन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उस तरह की एक्टिविटी को हम बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। जंपिंग इसका एक एग्जांपल है। Activity that are especially important for young people because the greatest gain in bone mass occurring during the year just before and during puberty. Actually होता क्या है ना, हमारा बोन और मसल्स डेवलप अर्ली एज में ही होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, हमें पता है लोगों को हमारे शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। बट क्या ये जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 206 बोन नहीं होता है? नहीं, अप्रॉक्स 350 और मोर देन 350 बोन। ये
ये जुड़ते हैं आपस में। बच्चे जब होते हैं तो ये बोन जुड़ करके 206 हड्डी में बदल जाते हैं। तो जब हमारा अर्ली स्टेज में ग्रोथ होता है तो उस ग्रोथ के दौरान भी एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें कि जब एडोलेसेंस होते हैं बच्चे, तो ये ग्रोथ जो होता है मसल्स डेवलपमेंट या बोन डेवलपमेंट उस समय ज्यादा होता है। कुछ पीरियड के बाद ये डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। अप्रॉक्स आफ्टर 30, अकॉर्डिंग टू मी इट्स आफ्टर 30 ये डेवलपमेंट बहुत स्लो रेट हो जाता है। एजिंग फैक्टर भी है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाता है। बट रेगुलर और प्रॉपर एक्सरसाइज से ये मेंटेन रहता है और बढ़ता है। बट हम लोगों के कंपैरिजन में प्यूबर्टी के एज में ये ज्यादा डेवलप करता है। स्वस्थ कौन? पात्र, पापा, गौरव, साक्षी, अंश, मम्मी, घर की बालकनी। आओ बच्चों, आज यहीं बाहर खुली हवा में खाना खाते हैं। पर पापा, अभी तो खाना बनने में देरी है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, पर कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, तुम सभी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तक तुम उत्तर दोगे, मम्मी खाना लेकर आ भी जाएगी। देखना मेरा उत्तर ही सही होगा। चलो बताओ, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? स्वस्थ वह है जो काम से जी नहीं चुराता, क्योंकि काम करने से भूख भी लगती है और नींद अच्छी आती है। देखो ना पापा, भैया मुझे काम छोड़ कह रहे हैं। तुम बताओ साक्षी। जो हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, चॉकलेट खाए वही स्वस्थ है। मम्मी भी तो यही कहती है। पेटू कहेगी हर समय खाने की ही सोचती है इसे, तब तुझे हर समय खेलने की। स्वस्थ वही रहता है जो खूब खेलता है, कसरत करता है। जैसे मामा जी, देखा नहीं मामा जी सुबह शाम तैराकी के लिए जाते हैं, कितने हट्टे कट्टे हैं। मैं तो मामा जी जैसा ही बनना चाहता हूँ। मम्मी का बालकनी में प्रवेश। सभी मम्मी की ओर देखते हैं। चलो भाई, सब अंदर चलो, खाना मेज पर लगा दिया है। मम्मी, पहले आप बताएं कि स्वस्थ कौन है? मेरी राय में स्वस्थ वह है जो नाना नानी की तरह शहर के प्रदूषण से दूर शुद्ध हवा, पानी और हरे भरे शांत वातावरण में रहता है। तभी नानी इतनी गोरी है। चलिए पापा, आप ही बताइए किसका उत्तर सही है? तुम सभी के उत्तर सही हैं। परंतु एक ही प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? साफ सुथरे वातावरण में मेहनत करके भोजन खाने वाला और व्यायाम करने वाला निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। पर हाँ, साथ ही दिमागी तौर से सावधान रहना और सब लोगों के साथ हंस बोलकर काम करना भी जरूरी है। और खेलकूद से हमारा मनोरंजन भी होता है और शरीर भी लचीला बनता है ना पापा? हाँ भाई हाँ। तो चलो अब पौष्टिक खाना खाने चले। हम लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा?
कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से? यस मैम। जो बीटेक का वो फिजिकल भारतीय स्वस्थ शरीर को लेकर था, स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं, सबके अपने अपने व्यू थे, जहाँ तीनों बच्चों के व्यू अलग था। और जब उनकी मदर आई तो उन्होंने अपना व्यू दिया कि कहाँ उनके नाना नानी जहाँ जो प्रदूषण से या पॉल्यूशन से दूर रहते हैं वो लोग स्वस्थ हैं। वहीं बच्चे का जहाँ भी था कि स्विमिंग करना या जो एक्सरसाइज करना वो हमें हेल्दी बनाता है। और इसी सीक्वेंस में और जो बच्चे खाने को लेकर और तरह तरह से सजेशंस दे रहे थे, लेकिन जब समराइज किया गया तो ओवरऑल यही निकला कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे फैट्स हो प्रोटीन्स हो, ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट हमारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं खाने के साथ साथ हमें उसको सही तरीके से डाइजेस्ट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी। जो हमारी बॉडी है यदि हम इसको कैलकुलेट करें, दैट इज वेरी बेसिस। यदि देखा जाए, हमने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा था कि यदि बॉडी का मेजरमेंट देखा जाए या इसको मापा जाए तो ये हमारी बॉडी 5 करोड़ की है, बट थोड़ी सी जो 2 इंच की हमारी जीभ है उसके टेस्ट को लेके हम जो न्यूट्रिएंट और जो भी चीजें खा लेते हैं दे आर वेरी हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए। फायदे के साथ साथ कभी नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचाती हैं। और पूरी बॉडी जो 5 फीट की हो, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 6, जितनी भी जिसका मेजरमेंट है पूरी बॉडी प्रॉब्लम से सफर करता है। तो हेल्थ को लेके हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी हेल्थ है, हमें उसकी केयर करना चाहिए, हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए और टाइमली डॉक्टर्स के पास विजिट करके जो भी जरूरी एक्सरसाइजेज हो, मेडिसिन हो, कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ जाके हम अपनी बॉडी को फिट रखें। एक्सरसाइज के लिए टाइम दें, हमें अपनी बॉडी के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जैसे एक मशीन एक टाइम के बाद खराब हो जाती है, हमारी बॉडी को भी उसी तरीके से रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं हमें सब्स्टिट्यूट उसका लेना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो हमें अपने हेल्थ का उतना ही ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ के लिए टाइम देना है, सबके लिए टाइम देना है, बट हेल्थ इज वेल्थ। बाय कीपिंग इन आवर माइंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मैम ने बहुत अच्छा बोला। और कोई जो वीडियो से क्या समझे वो बोलना चाहते हैं? थैंक यू सर, सर ने बहुत अच्छा बोला। Now, types of bone strengthening activities. Bone strengthening activities are the activities which enhance our bones. हमारे bones के strength को ये बढ़ाता है। तो ये activities क्या है? Children में देखा जाए तो games such as hopscotch. Hopscotch क्या होता है? आप लोग जानते हैं ये हॉपस्कॉच क्या होता है? नो मैम। Anyone but it is one apparel store I think. हम लोग अपने थोड़े ट्रेडिशन में जाते हैं मैम। पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग में भी आप लोगों में बहुत कोई इस गेम को खेला हो, बहुत कोई ना खेला। एक पैर पे कुछ ऐसा याद आ रहा? जैसे ये फ्लोर पे एक पैटर्न बना हुआ रहता था, उस पैटर्न पे एक पैर पे जंप करना रहता था। These are hopscotch। और ये जो है एक पैर पे क्रॉस भी करते थे, मैं पैटर्न को फॉलो करते थे। मैम प्लीज क्या आपने बोला, प्लीज एक बार बोलो। ऑसम मैम, प्लीज क्लैप फॉर मैम। Next, hopping. Hopping is a type of jumping. That
कीप जंपिंग। स्किपिंग, आप लोग जानते हैं स्किपिंग के बारे में? कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे आके हमको एक स्किपिंग का एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा सकते हैं? प्लीज मैम। यस मैम, नॉर्मल स्किपिंग। प्लीज क्लैप मैम। मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बट प्लीज क्लैप फॉर मैम। नेक्स्ट, जंपिंग रोप, रनिंग, स्पोर्ट्स such as gymnastics, basketball, volleyball, and tennis. To increase the bone strength, children must perform these activities. For adolescent, hopping, skipping, jumping rope, running, sports such as gymnastics, basketball, volleyball, and tennis. These activities must perform for adolescent to increase the bone strength. How are the guidelines for youth different from the guidelines for adults? Take into consideration natural activity pattern of children. Number one, all the episodes of moderate or vigorous intensity activity count toward daily requirement. These are the activities which must perform by our children and adolescents. Unstructured activity play can provide all the three types of physical activity. What is unstructured activity? What is unstructured activity? Unstructured activity क्या होता है? Any of you? कोई भी आप लोग? Unstructured activity is one such activity where we have not practiced or planned our whole regime according to the requirement of our body and the necessity of exercising in our body. Without any plan and process and prior preparation, we are doing whatever activity we get to know without knowing the muscle mass, the bone development, the diseases, the illness, the sickness and the problems with our joints if we have. And if we don't know, then we should not do whatever activity we get to know, like squats. If male teachers who do gym, they know squats are very good. But if suddenly a person is asked to do squats, it's very dangerous for that person. He might fall. So there are many such activities which we should avoid without prior planning. Push-ups, sit-ups, these are activities which also should not be done without practice and without reference, without any guideline. So the whole thing is that there should be a proper plan for doing exercise also. It's not that one sudden morning we wake up and we start doing exercise. No, it should not be like that. It should be properly planned. Thank you, ma'am. Please clap for ma'am. Actually, unstructured activity जो होता है वो हमारे प्लानिंग में नहीं होता है.
मैं अपने सही का प्लानिंग में नहीं होता, पर शेड्यूल में नहीं होता। जब हम लोग अपने फिजिकल एनहांसमेंट के तरफ जाते हैं, जिम करते हैं, तो हम लोग का क्या है ना कि एक शेड्यूल बना हुआ रहता है, उसी शेड्यूल को हम लोग फॉलो करते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज जो होता है वो हमारे शेड्यूल में नहीं होता है। वो हमारे जो प्लानर होते हैं या जो भी हमारे जो हमको सिखाते हैं वो बताते हैं कि आज आपको ये चीज करना है, ये परफॉर्म करना है, ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। अब ये डेली फिजिकल एक्टिविटी, अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी प्ले कैन प्रोवाइड ऑल 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी जो है हम लोगों को तीनों तरह का फिजिकल एक्टिविटी हम लोग इससे कर पाते हैं। डेली फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड नीड फॉर बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी एंड विगरस इंटेंस एक्टिविटी ईच वीक। मींस हमको ये परफॉर्म करना चाहिए, विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी। इससे क्या होता है, ये भी एक टाइप का एक्टिविटी है जो हमारे बोन को स्ट्रेंथ करता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें स्किपिंग, जंपिंग से हमारा वेट सिर्फ वेट ही लूज नहीं होता या हमारा हाइट ही नहीं बढ़ता, हमारा बोन स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है, हमारा बोन स्ट्रेंथ भी एनहांस होता है। वन मोर एक्टिविटी, मैं चाहता हूँ कि बात हो रही है तो साई खेलो इंडिया टेस्ट की तरफ से 3 कैटेगरी में टेस्ट को बांटा गया है। साई खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5 से 8 साल के लिए 3 टेस्ट रखा गया है, फिर 9 to 18 ईयर्स के लिए अलग टेस्ट है एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग टेस्ट है। ठीक है, तो जैसे 5 to 8 ईयर्स के लिए बीएमआई टेस्ट हो गया, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट हो गया कि एक पैर में आपको खड़े होकर टेस्ट देना है, और 9 to 18 ईयर्स के लिए आपको 50 मीटर डैश है, फिर सीनियर सिटीजन के लिए आपको बैक स्ट्रेस टेस्ट है, जैसे कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं बैक स्ट्रेस टेस्ट इस टाइप से, ठीक है, या फिर आप चेयर पे बैठे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट ये होता है जो सीनियर सिटीजन करते हैं, दूसरा है कि वो लोग बैठ जाते हैं फिर लेग सामने करके ये टेस्ट, ये सीनियर सिटीजन के लिए। थैंक्स। तो ये एक्टिविटी में आप लोगों को करना क्या है कि जितने लोग हैं, जितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, सभी को एक ड्रामा सोचना है और यहाँ पे आके उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप लोग को इसके लिए टाइम दिया जाता है 5 to 10 minutes to think about the drama and perform the activity. Topic related to health, how to increase your health. मीन्स आपको टॉपिक ऐसा चूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करना है जिसमें सपोज कीजिए कुछ बच्चे हैं वो असेंबली में खड़े हैं, ठीक है, और असेंबली में खड़े हैं वो बच्चे और उनको पीटी टीचर असेंबली के दौरान पीटी परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे से पीटी को परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इट्स ओबेसिटी के कारण, मोटापा के कारण परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज इसके लिए आप लोग एक ड्रामा प्लान कीजिए। मैंने आपको टॉपिक दे दिया, आपको 5 to 10 मिनट्स टाइम भी दे रहा हूँ, आप टॉपिक को ड्रामा को प्लान करो।
ओके मैम ड्रामा परफॉर्म करवा रही हूँ। Student attention. Stand straight. Stand at ease. ये आप क्या कर रहे हैं? मैम नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? मैम आपसे नहीं क्यों बेटा स्ट्रेस नहीं देना? मैंने कहा स्टैंड एट ईज, हाथ पीछे। यस। अगेन अटेंशन। अटेंशन। आप बहुत ही अनकेयरलेस हो। सॉरी मैम। स्टैंड एट ईज। स्टैंड हियर। Now you have आपको अपना बॉडी फिटनेस के लिए ठीक है थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाएंगे ठीक है रेज योर हैंड स्ट्रेट ठीक है मेक योर हैंड स्ट्रेट जब वन करूंगी ठीक है टू में अगेन स्ट्रेट वन two, straight your hands and stretch your leg. Down. कमर बांध रखिए, ठीक है? ये आप लोग इसी के लिए। अब आपको सामने फ्रंट बेंच करना है, ठीक है? Now down, down, थोड़ा सा up. Again down, up, hands down. मंडे वीडियो लीव सैंक्शन हाँ मंडे उनका लीव सैंक्शन करवा दिया ज्यादा छुपा दियो So please clap for this activity. तो हम लोग इस एक्टिविटी से हमें क्या देखें? हम लोगों ने ये देखा कि दो स्टूडेंट हैं जो पीटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक्टिव है एक एक्टिव नहीं है, एक फिजिकल एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते हैं। तो हमारा बॉडी उसके हिसाब से वर्क करना मीन्स हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करता है। सो नेक्स्ट कोई है जो ये इस तरह का एक्टिविटी परफॉर्म करेगा? गुड मॉर्निंग पीकू किया उठो बेटा चलो उठो सोने दो ना मम्मी बेटा तो चलो ब्रेकफास्ट रेडी एक्सरसाइज के ब्रश करो पीकू मम्मी 2 मिनट्स तो बेटा 2 मिनट साथ ही होता है तुम्हारा चलो तो मम्मी थोड़ा दे जी या ब्रश करो हाथ बेटा जल्दी से कम ऑन कम फास्ट ब्रेकफास्ट रेडी है पीकू उठ जाओ बेटा ये लो दूध और ब्रेकफास्ट तुम्हारा मम्मी थोड़ा सा फोन देख लो सुबह सुबह फोन चलो उठो उठो और जाओ ब्रश करो चलो कम ऑन ब्रश कर कम ऑन फास्ट हो गया रेडी हो स्कूल के लिए पीकू कम ऑन लेजी गर्ल सो चलो ब्रेकफास्ट चलो दूध पियो ब्रेकफास्ट मम्मी ये मिल्क मैं शाम को पीऊंगी मुझे अभी कोल्ड ड्रिंक्स सभी चलो दूध पियो मुझे मन नहीं है मम्मी दूध पियो पीकू मम्मी कोल्ड ड्रिंक्स भी तो जूसी है ना वो भी तो अच्छा ही है हेल्थ के लिए लो पियो कोल्ड ड्रिंक्स चलो चलो गाड़ी चलो बाय पीकू
रेडी हो जाओ, चलो स्कूल। मम्मी आज लंच में मुझे पास्ता दे। पास्ता नहीं मिलेगा बेटा, जाओ स्कूल। क्या स्कूल चलिए, टाइम हो गया, वैन आ गई स्कूल की। नहीं, अगर तुम मुझे पास्ता या पिज्ज़ा दोगी तभी मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, लो पास्ता और पिज़्ज़ा खाओ और स्कूल में जाओ। ये मुझे मिल गया। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद। मम्मी पेट में दर्द है मम्मी। पेट में दर्द, लूज मोशन भी हो रहा है। हाँ मम्मी, जानती हो रहा है और जानती थी बेटा यही होगा। और खाओगी पिज़्ज़ा और पास्ता? नहीं मम्मी, और मैं नहीं। थैंक यू। Please clap for man. तो देखा आप लोगों ने, हेल्दी फूड ना खाने से हम लोगों को बहुत बीमारी हो सकती है, बहुत तरह का बीमार, हम लोग बीमार हो सकते हैं। सो नेक्स्ट, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहेगा? Good morning, ma'am. Very good morning. Stand properly. You know now today is your PT period. This is your PT period. मैम आज छुट्टी क्यों नहीं है? छुट्टी नहीं होता है बेटा, अभी छुट्टी का टाइम कहाँ हुआ है? भूख भी लगी है। ठीक है, घर से आप खा के क्यों नहीं आए हो? क्या खाया तो इसलिए नहीं खाया ना, स्कूल आना था इसलिए नहीं खाया। ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट बेटा, आप खा के आए हो घर से? एंड आप? वेरी गुड, ओके। मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैम। ये आपका पेट है? आपको मतलब यही नहीं पता है पेट कहाँ से लगता है? मैम लंच में थोड़ा अच्छा वाला लाइए। खा के आए, बाइक ये बेटा बात, अभी आप खड़े रहिए। मम्मी ने कहा था स्कूल जाके खा लेना, हम बोलते कि मनु ने नहीं खाने दिए। स्कूल में टिफिन पीरियड में खाया जाता है बेटा। जैसे कोई बच्चा नहीं देखेगा नीचे से ऐसे निकाल के खाना। No, Please, this is please. not possible, better no. This is your PT period, stand proper. Okay, attention. You are not doing, what happened? ठंडा हो जाएगा मेरा पास्ता। You are worried about your pasta? खाने दीजिए ना। Very bad. आप लोग को कोई बैलेंस डाइट नहीं है, आप क्यों लाए हो टिफिन में? मैं तो पिज़्ज़ा लेके आई हूँ। Very nice. You? पास्ता, मैगी और एक जूस की बोतल छोटी सी। Wow, very good. ये खा के and you are not able to stand properly. आपका क्या है? Very good. Learn from her. Include green vegetables in your tiffin. Now stop talking and do your exercise. PT number 1, spread your hand. Do like this. मैं ज्यादा नहीं लेगा। You are disturbing the whole class. Not disturbing, ma'am. Yes, you are disturbing. No, ma'am, I am not disturbing. चक्कर आ रही है मैम। I'm sorry. बहुत चक्कर आ रही है। मैम मुझे बहुत चक्कर आ रही है मैम, मैं गिर जाऊंगी मैम। बेटा, यस मैम। टिफिन में क्या लाए थे? पिज्जा लाएंगे। पिज्जा खाओगे तो आपको चक्कर ही आएगी। Go and sit. थैंक यू मैम। What are you saying? Nothing. ये बोल रहे हैं बाकी सब बोल रहे हैं नहीं जब मेरा नेक्स्ट करना पिज्जा खाना, रोटी सब्जी नहीं खानी। ऐसा नहीं होता है बेटा। मेरी बच्ची ही खाती है। आपकी बैड टिफिन है क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहा है। She is unfit because of her food. मैम एक बात सुनिए ना, देखिए अभी बच्चे हैं, अभी टीचर खाएंगे, मम्मी तो डेली रोटी सब्जी खाती है, बड़े होंगे तो हमें भी रोटी सब्जी और क्या क्या वो खाती रहती हैं, तो वही खाना पड़ेगा ना। इसीलिए अभी बच्चे में पिज्जा सब खाते हैं ना, पिज्जा खाने दीजिए, जूस खाने दीजिए, हमको कॉफी देंगे ना। तब तक बेटा ऐसा लगे कि ये liver. Look, you थक गया just because of your food. No, you are eating pasta, pizza and noodles. That's why you
activity are high school student. So these are the graphs between percentage and male, female, white, black or Hispanic. You know what is Hispanic? आप लोग जानते हैं Hispanic क्या होता है? The person who speaks Spanish, the person belongs to Spain or who speaks Spanish, or his or her ancestor belong from Spanish. They are called Spanish. Okay, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं वो Spanish. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज दिया गया कि कितने व्यक्ति जो हैं ये फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ दिख रहा है टोटल 71। ये एक और बात, ये जो 70.1% आप लोगों को दिख रहा है ये एवरेज है। अगर बात करें फीमेल तो परसेंटेज जो है फीमेल है 10.5। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट द होल वर्ल्ड फिजिकल एक्टिविटी फीमेल के द्वारा किया जाने वाला एक्टिविटी वो कम है एज कंपेयर टू मींस फीमेल फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं, ये डेटा ये बता रहा है। नेक्स्ट मेल में ये 23.7% है, व्हाइट, ब्लैक एंड हिस्पैनिक। व्हाइट मींस अगर बात करूं मैं व्हाइट का, तो व्हाइट गोरे लोगों को कहा जाता है, ब्लैक काले लोगों को कहा जाता है। ये डिफरेंस इसलिए है ना, ये एक्चुअली ये क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से एक्चुअली जो लोग ठंड में रहते हैं उनका रहन सहन तरीका अलग होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर पे जो लोग रहते हैं वो काले होते हैं, और खासकर जो पोल के नजदीक या इन्फ्लुएंस होता है पोल की तरफ वो लोग गोरे होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। तो उन लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है डेफिनेटली अलग होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो उन लोगों का 18.5% व्हाइट का, ब्लैक का 15.5% और 14.5% हिस्पैनिक है। अब बेसिकली बात करें ठंड में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं एज कंपेयर टू, क्योंकि गर्मी में एक्सरसाइज करना और भी थोड़ा और टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो परसेंटेज यहाँ भी डिटोरिएट करता है इस कंडीशन की वजह से। मीटिंग द गाइडलाइन, यूथ हु डोंट मीट द गाइडलाइन slowly increase active in small state, participate in enjoyable activities. Means what are some basically कुछ protocols हैं, कुछ नियम हैं जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो प्रोटोकॉल क्या है जो हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हम लोगों को एक स्टेप वाइज और एक एल्गोरिथम होना चाहिए। एक एल्गोरिथम वाइज हम लोगों को फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट को परफॉर्म किया जाए। अब ये फ्लो चार्ट अगर मैं बोलूं कि मेरे हिसाब से क्या फ्लो चार्ट प्लान होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सबसे पहले एरोबिक एक्टिविटीज हो, मतलब एरोबिक एक्टिविटी किया जाए। नेक्स्ट बोन या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। एक्चुअली होता क्या है, एरोबिक एक्टिविटीज क्या करता है, हार्ट रेट, ब्रीथ रेट को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये इंक्रीज करता है। तो जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम हो और भी कहीं जो भी हो, या हम लोग स्कूल में, जिम में, प्लेग्राउंड में या कहीं भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को वैसा इनिशियली वैसा एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे बोल सकते हैं कि बॉडी के ब्रीथ मतलब हार्ट रेट को बढ़ाए, ब्रीथ रेट को बढ़ाए और बॉडी के
अच्छा एक एग्जांपल है जो हमारे इन सब चीजों को बताता है। जब ये इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग नॉर्मल और कॉमन लैंग्वेज में वार्म अप बोलते हैं, तो कोई भी जो फिजिकल एक्सरसाइज भी परफॉर्म करते हैं तो वार्म अप के बाद ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक प्रोटोकॉल है, एक गाइडलाइन है जो सभी को फॉलो करना चाहिए। A day in the life of Colin। तो कॉलिन के बारे में, कॉलिन जो कि हम लोग प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, कॉलिन एक 7 साल का बच्चा है। तो वो किस तरह का एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो स्कूल से घर जाना और स्कूल आना, ये 20 मिनट में, ये देखिए ये उसका प्रोटोकॉल है, ये एक फ्लो चार्ट है उसका जो कि कॉलिन तैयार किया है। कॉलिन का ये फ्लो चार्ट है, एक एल्गोरिथम है जिसके बेसिस पे कॉलिन अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। जैसे वो अपने स्कूल को जाता है, फिर स्कूल से घर आता है, और इसमें इसको समय लगता है 20 मिनट। रोप जंपिंग करना, जिम्नास्टिक करना, अपने फिजिकल एजुकेशन के क्लास में 10 मिनट करता है। प्ले ऑन द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस 10 मिनट। तो जब उसको ब्रेक होता है, जब उसको ब्रेक टाइम मिलता है तो या फ्री टाइम मिलता है, तो वो प्लेग्राउंड में जाकर के 10 मिनट खेलता है। 10 होमवर्क 20 मिनट 20 मिनट में होमवर्क करता है, क्योंकि पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान 7 साल का बच्चा था कॉलिन। वॉच टेलीविजन फॉर 30 मिनट्स। प्ले सॉकर विद फैमिली 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए फुटबॉल खेलता है अपने फैमिली के साथ। प्ले वीडियो गेम फॉर 30 मिनट्स। टोटल फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है ये 60 मिनट का, जिसमें वेगरस इंटेंस एरोबिक एक्टिविटी जैसे जंपिंग रोप वो करता है, उसमें इंक्लूडेड रहता है 60 मिनट में। बोन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए जंपिंग रोप, जिम्नास्टिक करता है, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए जिम्नास्टिक करता है। तो ये सब एक्टिविटीज है जो कॉलिन करता है, और कॉलिन जो है अपने डे टू डे लाइफ में एक एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट तैयार करके रखा है, जो उसको पर डे इसी एल्गोरिथम, इसी फ्लो चार्ट को ये बोलता है, सॉरी करता है। कॉलिंग वीकली फिजिकल एक्टिविटीज। कॉलिंग का ये जो फ्लो चार्ट है वो पर डे के हिसाब से चेंज होता है। तो देखते हैं क्या है। जैसे फॉर मंडे वॉक टू एंड फ्रॉम स्कूल 20 मिनट आने जाने में लगता है उसको। प्ले ऑन प्लेग्राउंड 10 मिनट के लिए खेलता है। जंप रोप जंप करता है 10 मिनट। जिम्नास्ट करता है 10 मिनट। फुटबॉल खेलता है फैमिली के साथ 20 मिनट। टोटल अगर काउंट करें तो ये हो जाएगा कितना 20 40 50 70 मिनट्स। मींस मंडे का इसका जो रूटीन है वो 70 मिनट्स का है। ट्यूसडे वॉक टू एंड फ्रॉम स्कूल, अगेन अपने स्कूल को जाना, स्कूल से घर आना 20 मिनट टाइम लेता है। प्लेग्राउंड में 25 मिनट खेलता है, 25 मिनट्स खेलता है। प्लेग्राउंड में क्लाइंबिंग करता है 15 मिनट्स का। तो ये इसका शेड्यूल ट्यूसडे के लिए 60 मिनट्स, अगेन वेडनेसडे के लिए। तो ये एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है उसका कॉलिंग का, ये हर दिन के हिसाब से फिक्स है। कॉलिंग एक अपना लाइफ में ये बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या ये खुद जो भी है वो अपने लाइफ में एक फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बना के रखा हुआ है। प्रोटोकॉल है, इसका नियम है कि हमको इसी फ्लो चार्ट को, इसी एल्गोरिथम को फॉलो करना है डे टू डे। अगेन टेक वन मोर एग्जांपल, मरियम। मरियम अ 16-year-old adolescent। अब ये क्या करती है इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। Maria participate in many types of physical activity in many ways. She played tennis, does sit-up and push-up during physical education class. तो ये टेनिस खेलती है, सिटअप करती है, पुशअप करती है अपने फिजिकल क्लास में। Next, she like to play basketball, do yoga and go dancing with her friend. YMCA, इसके बारे में आप लोग सुने क्या होता है? YMCA ये क्या है? कोई भी आप लोग जानते हैं इसके बारे में?
नाम सुनिए मैम? हाँ मैम, आपने नाम सुना होगा, कंफर्म मेरे को भी नहीं पता, बट ये है क्या मैं बता सकता हूँ। मैम ये एक इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट जो है ये सारा फिजिकल एक्टिविटीज और जो भी गेम्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज, वो सारा ये कंडक्ट भी करवाता है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करना रहता है, ठीक है। तो इस एक कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, इस कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है। मतलब यहाँ पे जाके इसके लिए बास्केटबॉल ये खेलती है, ठीक है, योगा करती है, डांसिंग विथ हर फ्रेंड, सी लाइक टू वॉक एंड हाइक विथ हर डॉग। अगेन पहाड़ पे चढ़ना शौक, अपने डॉग के साथ जाना वॉकिंग पे। तो अगर बात करें कि इसका एल्गोरिथम क्या है, इसका फ्लोचार्ट क्या है जिसको ये फॉलो करती है, तो वॉक विथ डॉग 1 मिनट कुत्ते के साथ जाना, 10 मिनट के लिए वॉक करना, प्ले टेनिस 30 मिनट के लिए, सिट अप पुश अप 5 मिनट्स, प्ले विथ चिल्ड्रन एट पार्क व्हाइल बेबी सिटिंग 15 मिनट्स, टोटल फिजिकल एक्टिविटी 60 मिनट्स का होता है। वेगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी जैसे टेनिस इसको खेलती है। इसका एग्जांपल है वेगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज, ये एरोबिक एक्टिविटीज का ही पार्ट है, क्योंकि ये ब्रीथ रेट को फास्ट करता है। टेनिस खेलने से हमारा ब्रीथ रेट फास्ट होता है और हार्ट रेट भी फास्ट होता है। बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज, इससे बोन की स्ट्रेंथ, बोन का भी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, मसल्स का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, सिटअप और पुशअप। तो ये एक्टिविटी जो कि डे टू डे लाइफ में महिला परफॉर्म करती है। We all know that exercise makes us feel better, but most of us have no idea why. We assume it's because we're burning off stress or boosting endorphins. But the real reason we feel so good when we exercise is that it makes the brain function at its best. And in my opinion, this benefit is far more important than what it does for the body. Building muscles, conditioning the heart and lungs are essentially side effects. The real point of exercise is to build and condition the brain. In today's technology-driven, plasma-screened world, it's easy to forget that we were born to move. Nowadays, we spend most of our time sitting behind a desk or lying on the couch, and we have basically removed movement from our lives. This has become a norm in the past century, but we must remember that we didn't evolve from this type of sedentary lifestyle. We evolved as hunter-gatherers. Our ancestors had to walk 5 to 10 miles on an average day just to be able to eat. Since it takes tens of thousands of years for our biology to evolve, we consider there's a huge mismatch between our lifestyle and our genes. Today, we no longer hunt and gather, and not only is that a problem, but it poses one of the biggest threats to our continued survival. 65% of America's adults are overweight or obese, and 10% of the population has type 2 diabetes, a preventable disease that stems from inactivity and poor nutrition. We're literally killing ourselves, and it's a problem throughout the developed world. What's even more disturbing is that inactivity is killing our brains, as well as physically shrinking them. Now you might be thinking, why would our brain shrink if we don't move as much? What we really need to ask ourselves is, why do we need a brain at all? You might say that we have brains to come up with ideas or to analyze different situations. But the answer is that only a mobile creature needs a brain. The brain's main purpose is to perform complex motor movements. For example, a koala used to have a much bigger brain than it does now. However, once it evolved its digestive system to survive on just eucalyptus leaves, it meant that less movement was required.
Fewer complex movements also meant less brain was needed, so the koala's brain physically shrunk. This is important information because guess who's running the show? Your brain. The brain isn't a fixed organ that cannot be changed. It's adaptable and it can increase in size like any other muscle in your body, or in the koala's case, decrease in size. So guess what turns out to be the best thing you can do for your brain today? That's right, physical exercise, particularly high-intensity aerobic exercise. Going to the gym and lifting weights every 10 minutes, like many powerlifters do, doesn't seem to have such a powerful impact as high-intensity exercise does. Powerlifting still benefits the brain, don't get it wrong, but to reap all the benefits, you need to get your heart rate up to 80% of its maximum beats per minute. So what exactly are those benefits I speak of? Well, besides preventing your brain from shrinking, you can expect an improved ability to learn and absorb new information. It's been shown that students with higher fitness scores also have higher test scores. Exercise also decreases depression and relieves stress. It even helps prevent cognitive decline and Alzheimer's disease. If you're a woman, you can expect less mood swings. If exercise came in a pill form, it would be hailed as the drug of the century. However, it sadly doesn't have such powerful marketing as some prescription pills do. Plus, you have to put in the effort, and that's not quite as appealing. But it's simply one of the best treatments we have for a lot of psychiatric problems. Dr. John Raby, the author of the book Spark, says that exercise is like taking a little bit of Prozac and a little bit of Ritalin. For those who don't know, Prozac is an antidepressant, and Ritalin is used for treating patients with ADHD. It's already well known that exercise increases levels of serotonin, norepinephrine, and dopamine. All are important neurotransmitters that affect thoughts and emotions. The drugs that just increase neurotransmitters can leave you with many side effects. But when you exercise, your brain will not just increase the neurotransmitters, but it will also balance them. It's no secret that some women get crazy mood swings when it's their time of the month, but really it's not their fault as their hormones are out of balance. Exercise will help tone the negative consequences of hormonal changes, and for others it will enhance the positive ones. But overall, exercise has the most profound effect on learning. Right now, the front of your brain is firing signals about what you're reading and listening to, and how much of it is soaked up has a lot to do with whether there is a proper balance of neurochemicals and growth factors to bind neurons together. If you had half an hour of exercise this morning, you are in the right frame of mind to sit still and focus on this video, and your brain is far more equipped to remember more of it. A 2007 study found that people learn vocabulary words 20% faster after they exercise compared to when they remain sedentary. This is all thanks to a protein called brain-derived neurotrophic factor, also known as BDNF. BDNF nourishes brain cells and makes them grow. Just like a plant fertilizer supports plant growth, BDNF acts as a brain fertilizer. A 2013 study showed that just 20 to 40 minutes of aerobic exercise increased BDNF in the blood by 32%. This makes perfect sense in light of evolution. If we go back to our example of ancestors, the only reason we need an ability to learn is for the sake of survival. Basically, to find food and shelter, or to remember which animals to avoid. Back in the day, whenever we moved, it meant something important was going on. We had to escape from a predator, or remember the path we took so we didn't get lost. However, when we were resting, it meant nothing important was going on. We still have this ancient mechanism, so as far as our brains are concerned, if we are not moving, there is no reason to learn or remember anything. If you have an important exam coming up, you might want to take a run in the park before hitting the books. The boost of BDNF will help you absorb and retain more information. As I've mentioned before,
exercise has the ability to reduce a lot of our problems. But even if you don't have any issues and you think you're feeling great, there are still areas that can be improved. You can feel better than ever and learn faster than ever. If you imagine for a moment your life as a video game, you could consider exercise as a cheat code. But how can we get the best results with the least amount of time invested? Like I said, high-intensity aerobic exercise is the best way to go. This involves running, jump rope, anything to get your heart rate up all the way up to 80% of its maximum rate. It's even better if the activity involves some complex motor movements and it's not just putting one foot after the other. Good examples are tennis or dancing. Optimal daily dose of exercise seems to be 20 to 40 minutes in the morning. For some people, the benefits last for the whole day, but for the majority, they seem to last about 2 to 4 hours. This is why it might be a better idea to break it down into smaller segments. So let's say you do 20 minutes of your core exercise in the morning, and then exercise 2 times for 5 minutes throughout the day. This way, you can extend the benefits. If you currently live a more sedentary lifestyle, it's better to slowly build up to those times. 40 minutes is just a recommendation and not a requirement. It's up to you to find your optimal dose depending on your schedule and personal needs. All of this information about the brain and exercise was found in John Ratey's book, Spark. If you enjoyed the video and would like to learn more about this topic, you should check out the book. I highly recommend it, and I've left a link for you in the description. After reading this book, I have realized how important exercise really is, and not just for the body, but for the brain as well. This is why I made exercise a core habit in my routine. Now when I wake up, I always go for a run or use a jump rope to get my heart rate up and prime myself for the day. I feel more energy, less stress, and I can tackle more information with less strain. I hope this video inspires you to do the same and you make exercise a core part of your daily life. So, आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे? मैं ये जानना चाहता हूँ इस वीडियो से क्या? मैम, प्लीज। थैंक यू सर। जहाँ इस वीडियो ने हमारे आर्कियोलॉजी पुराने इतिहास से लेके मॉडर्न साइंस तक पहुँचा दिया, कहाँ हमारे एंसेस्टर्स जो कि प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो पाते थे, ना कोई स्टैंडिंग देना, राइट पोस्चर, हम सीधे खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप हो गई हैं जो कि हमारी दोनों हाथों से काम करने की कैपेसिटी और इसके साथ साथ बहुत बड़ी जो पार्ट है दैट इज लैंग्वेज। हमारे पास जो भाषा है, हम अपने विचारों को आदान प्रदान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन विशेषताओं के साथ यदि हम देखें कि कहाँ हमारे एंसेस्टर्स की प्लेट में खाने में क्या हुआ करता था और आज वो मॉडिफाइड होकर कहाँ तक पहुँच गया है, कहीं ना कहीं हम मॉडर्न तो बहुत हो गए हैं, होना जरूरी भी है क्योंकि हमें ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन हमने अपनी हेल्थ को कहीं बहुत कहीं पीछे छोड़ दिया है। जो आज अवेयर है वो अपनी हेल्थ के साथ खुश हैं, उन्होंने फॉलो किया है, और यदि जो सफर कर रहे हैं वो आज हमें एक सीख दे जाते हैं। कहा गया है कि यदि आप जीतते हैं तो योद्धा बन जाते हैं और हारते हैं तो एक बहुत बड़े मोटिवेटर बनकर आप दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो जिन्हें प्रॉब्लम्स है वो आज हमें सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप ऐसा कीजिए, आपके आगे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहाँ हमारे ब्रेन में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी जगह बहुत सही हैं, बट ड्यू टू हमारी जो रॉन्ग हैबिट्स या जो पर्सन्स की रॉन्ग हैबिट्स हैं उनके कारण उनकी बॉडी को ये सब सफर करना पड़ता है, और फिर कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जाकर उनके लिए उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है जो उन्होंने कभी अपनी या के स्टेज पर नहीं किए थे। डिस्टर्बिंग शेड्यूल, प्रॉपर नींद का ना होना, ये सभी हमारी आदतों को बहुत खराब कर देते हैं। स्टडी में ये भी पाया गया कि 11 बजे के बाद आपकी बॉडी में जितने भी रिपेयर्स होते हैं वो 11 बजे के बाद होते हैं। यदि 11 बजे शेड्यूल लोगों का डिस्टर्ब है, 11 बजे ही
मॉडर्न लाइफ में हम उसको फॉलो किए हैं, वी आर फॉलोइंग, और वो हमारे लिए बहुत नुकसान कर रहा है। तो जहाँ प्रॉपर पानी पीना, गहरी नींद लेना, डाइट में सब कुछ इंक्लूड करना, मोटा अनाज। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग के यहाँ असेंबली में हम लोग ने एक लेक्चर सुना था कि हमें मोटा अनाज, जो कि हमारा मेन ब्रेन हुआ करता था, वो हमारी प्लेट से दूर है। एक सीजन कभी कभी मौके पर वे गया कि मक्की की रोटी, सरसों का साग, एक दही स्टेट का खाना बन गया और हम शौक में खाते हैं। जो आज हम शौक में खाते हैं वो हमारा कहीं डेली हुआ करता था, उनको इंक्लूड करना है, अपने खाने को हमें इंक्लूड करना है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी हमें करना है। और जो टेंशन, स्ट्रेस किसको नहीं होता है, एवरीबॉडी, हर किसी को स्ट्रेस होता है, बट कीप अ स्माइल ऑन द फेस, मुंह पर हंसी रखा करके, हंसने से बहुत सारी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती हैं। जब हम हंसते हैं तो लोग हमारे साथ हंसते हैं, हमारा गम कोई नहीं ले लेता है। रोने में हमारी बॉडी की, हमारे फेस की बहुत सारी नर्व्स जो मसल्स होती हैं उनको ही हाथ में पहुंचता है, और हम उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सफर करते हैं और कहीं ना कहीं गलत रिजल्ट के साथ हमारे उभरता रहता है। तो हमें पॉजिटिव वे में रखकर, स्माइलिंग फेस रखकर, हेल्दी गुड हैबिट्स को फॉलो कर हमें अपनी हेल्थ का, अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। 2 लाइन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। थैंक यू। एक्सीलेंट मैम, मैम ने बहुत अच्छा बोला। प्लीज क्लैप फॉर मैम। Thank you, sir, for the lovely video. It was really very informative. And thank you, ma'am, for your words, for explaining the video. I'm just here to explain that little part of koalas. We all know koalas mostly live in Australia. Why they are found in Australia, there is a story behind it that koalas eat eucalyptus leaves. Now, eucalyptus leaves are the leaves which are found on the eucalyptus trees, and eucalyptus trees itself are found in Australia. Earlier they were found in North America, parts of North America, the colder areas, and in abundance in Australia. So now when koalas eat eucalyptus leaves, it was said that koalas' brains are small in size. It has shrunk. Why is it so? The main reason is koalas sleep for 18 hours of their day. They sleep for 18 hours a day, and the rest 6 hours when they are awake, they do nothing but eat. Eat and eat. What do they eat? They eat eucalyptus leaves. And because of this way of their living, their brains are not properly developed. Even when they are young, they are born, they do not have a eyesight. It is later on developed in them after 2 years of age. Now what happens when they eat eucalyptus leaves? Their body also starts smelling like eucalyptus oil smell. Their body can be identified by that smell, which we mostly go and buy from outside, that eucalyptus oil, which is good for stress relief, insomnia, and migraine pain. That eucalyptus leaves, they are having medicinal qualities, and most of them are eaten by the koalas, and the koalas have also become a living and moving eucalyptus smell bomb. So this was just a small information I wanted to share with you all. And apart from that, this exercise stimulates our brain, our heart, our lungs, our metabolism. And above all, if we exercise, there will be a balance developed between all the organs. One more thing, there was dopamine test. There is a medicine called dobutamine, which is injected in a heart patient, which
extent that if a person is doing suppose treadmill, on that treadmill the heart rate increases by doing that physical exercise. Though glutamine is a medicine that is injected in a heart patient to see the effect on that person if he does treadmill, what happens to his heart and at what rate his heartbeat can increase, and this way they treat the problem of they get to know the problem or ailment in that heart patient. Thank you, sir. मैम ने कोआला के बारे में बताया। कोआला जो है बेसिकली वो एक टाइप ऑफ मंकी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में ये जो मंकी पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ अभी ये मंकी है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये अभी कहीं ना कहीं कुछ समय पहले इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा हुआ है। अब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज क्यों है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ आया था इस मंकी से रिलेटेड। क्या आया था वो न्यूज़ कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया है, जंगल में फॉरेस्ट फायर हो गया वहाँ पे, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे प्रजाति जो है, बहुत सारे जो इनके वाला मंकी है वो उसकी वजह से जलने की वजह से वो डेथ कर गए। ठीक है, तो अभी इनको रेड बुक में शामिल कर लिया गया। रेड बुक में उस तरह के स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले, एक्सटिंक्ट नहीं होने वाले हैं, तो कुछ कंजर्वेशन एक्ट उस पे लगाया जाता है कि उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Barrier to meeting the guidelines. So, what are the barriers to meet the guidelines such as for physical activities? What are the barriers by which we cannot perform some physical activities? क्या हो सकता है? और कैसे हम ये सब चीज से कोप अप करें और कैसे हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज को के तरफ ज्यादा रुझान हो हमारा। तो देखिए सबसे पहला चीज जो पॉइंट्स पे है एटीट्यूड। मेरा पर्सनल बिलीव यही है कि ये बहुत बड़ा चीज है एटीट्यूड। अगर विल पावर अगर नहीं है हमारे पास तो हम कुछ भी काम को नहीं कर सकते। ये हमारा पर्सनल एटीट्यूड हुआ। अगर मेरा विल पावर है कि हम इस काम को कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम उस काम को कर सकते हैं। मुझे अगर लगता है कि पर्सनली मुझे जिम जाना चाहिए तो मैं जाऊंगा। अंदर से जब प्रेरणा होता है तो सभी लोग जब जागरूक होते हैं तो लगता है कि हाँ चलो इस काम को करना चाहिए। बट हमारे साथ क्या है, हम लोगों के साथ क्या है, हम लोग किसी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसको एंड नहीं कर पाते। बहुत सारे इश्यू है हमारे लाइफ में, तो उस इश्यू की वजह से तो पहला जो है पॉइंट है एटीट्यूड। बिलीव इन एबिलिटी टू बी फिजिकल एक्टिव। पहला कि हाँ कि हमको फिजिकली फिट रहना है, एक्टिव रहना है, ये पर्सनल बिलीफ होना चाहिए। जब अगर हमारे मन में ये बिलीफ आ जाए कि नहीं हमको करना है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम लोग हम लोग आज के जनरेशन में जी रहे हैं, हम लोग थोड़ा सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। सोसाइटी के तरफ हम लोग आया, हम लोग मीडिया के तरफ से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं किसी भी चीजों को लेकर के। लेट्स टेक एग्जांपल लेते हैं हम अपने सोसाइटी को देखते हुए। तो कोई पर्सन है जिसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है तो हमको देख के लगता है नहीं अरे यार इसका फिटनेस तो बहुत अच्छा है, हमें भी करना चाहिए कुछ, हमें भी कुछ करना चाहिए। बट ये उसी इंसिडेंट में आता है और कुछ समय के बाद ये चला जाता है। हम लोग इन्फ्लुएंस तो होते हैं बट नॉट अप टू द सर्टेन लिमिट। पेरेंटल सपोर्ट ये भी है। बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं उनके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है, नहीं मेरा बच्चा तो फिजिकली फिट रहे या फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो पेरेंट का एक अपने बच्चे के प्रति ये होता है कि नहीं इसको
environment, safe location to be active, access to equipment, financial cost of physical active time. हाँ, सभी के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम लोग कन्वीनियंस देखते हैं। हम लोग कन्वीनियंस देखते हैं, लोकेशन कि हमारे लोकेशन से सपोज एक एग्जांपल, जैसे कि अगर हमको जिम करना है तो जिम करने के लिए हम पहले देखेंगे कि मेरे घर से कितना लोकेशन क्या है, उसका क्या टाइमिंग लग रहा है, कितना समय जाने में लग रहा है, कितना समय मेरा कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, लैप्स हो रहा है, प्लस मेरे घर से कितना दूर है। तो ये सारी चीज को हम प्रोविजन देखते हैं, तभी हम इस चीज को प्रीफर करते हैं। अब प्लस फिनेंशियल कॉस्ट भी है कि अगर जिम ज्वाइन किया मैंने तो वहां जाके फिनेंशियल मतलब को कितना पैसा लग रहा है वहाँ। ये सब हमारे लिए जो हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजों को प्रोविजन को देखते हुए कोई भी काम करते हैं। The victory of the underdog over the favorite team, the last-minute penalty shot that wins the tournament, the high-energy training montages. Many people love to glorify victory on the playing field, cheer for favorite teams, and play sports. But here's a question. Should we be so obsessed with sports? Is playing sports actually as good for us as we make it out to be, or just a fun and entertaining pastime? What does science have to say? First of all, it's well accepted that exercise is good for our bodies and minds, and that's definitely true. Exercising, especially when we're young, has all sorts of health benefits, like strengthening our bones, clearing out bad cholesterol from our arteries, and decreasing the risk of stroke, high blood pressure, and diabetes. Our brains also release a number of chemicals when we work out, including endorphins. These natural hormones, which control pain and pleasure responses in the central nervous system, can lead to feelings of euphoria, or what's often called a runner's high. Increased endorphins and consistent physical activity in general can sharpen your focus and improve your mood and memory. So does that mean we get just as much benefit going to the gym 5 days a week as we would joining a team and competing? Well, here's where it gets interesting. Because it turns out that if you can find a sport and a team you like, studies show that there are all sorts of benefits that go beyond the physical and mental benefits of exercise alone. Some of the most significant are psychological benefits, both in the short and long term. Some of those come from the communal experience of being on a team. For instance, learning to trust and depend on others, to accept help, to give help, and to work together towards a common goal. In addition, committing to a team and doing something fun can also make it easier to establish a regular habit of exercise. School sport participation has also been shown to reduce the risk of suffering from depression for up to 4 years. Meanwhile, your self-esteem and confidence can get a big boost. There are a few reasons for that. One is found in training. Just by working at skills, especially with a good coach, you reinforce a growth mindset within yourself. That's when you say, even if I can't do something today, I can improve myself through practice and achieve it eventually. That mindset is useful in all walks of life. And then there's learning through failure, one of the most transformative long-term benefits of playing sports. The experience of coming to terms with defeat can build the resilience and self-awareness necessary to manage academic, social, and physical hurdles. So even if your team isn't winning all the time, or at all, there's a real benefit to your experience. Now, not everyone will enjoy every sport. Perhaps one team is too competitive, or not competitive enough. It can also take time to find a sport that plays to your strengths. That's completely okay. But if you spend some time looking, you'll be able to find a sport that fits your individual needs. And if you do, there are so many benefits. You'll be a part of a supportive community. You'll be building your confidence. You'll be exercising your body, and you'll be nurturing your mind. Not to mention having fun. So, आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा?
मैम हम लोगों ने नोटिस किया कि एक्सरसाइज का बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक है फिजिकल फिटनेस, ठीक है। फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग ये हमें ये बताता है कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, कितना ज़रूरी है वो हमारे फिटनेस के लिए। इनफैक्ट ये बहुत सारे डिजीज जो है पेशेंट्स जो हैं जो हार्ट का है, फिर बहुत सारे ऐसे डायबिटिक रिलेटेड इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। इन सब चीज़ों का होने का चांसेस बहुत कम होता है। बिकॉज ऑफ दिस इट हेल्प्स टू मच। एंड सबसे बड़ी बात कि हमें एक्सरसाइज हम सोचते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि सर ने कहा, ठीक है, स्पेंड मनी ये सारी चीज़ें लगती हैं इन सब चीज़ों में, बट अकॉर्डिंग टू मी नहीं। अगर आपका अपना विल पावर है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो इस चीज़ को, ऑब्वियसली ये कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है, और अगर यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ सर, तो ड्यूरिंग माई कॉलेज डे आई वॉज 82 kg एंड राइट नाउ आप लोग देख सकते हो कि मैं क्या हूँ, ठीक है। प्लीज क्लैप फॉर मैम। एंड उस टाइम मुझे सारे फ्रेंड्स, मेरा कॉमन नेम था मोटी, वही कहते मुझे सारे फ्रेंड्स मेरे थे। मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों है, बाय पर्सनैलिटी ही मुझे ये क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने सोचा ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये करने लगी कि नहीं, और मैंने एक दिन, फिर उसके बाद एक दिन किया, लगा नहीं हो पाया, दूसरे दिन किया, नहीं। आप लोग सिर्फ ये नहीं करोगे, मैंने सिर्फ 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ एक्सपेंड की, ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए। सिर्फ एक स्किपिंग, ओनली स्किपिंग, और सारी चीज़ें घर पे, प्रॉपर डाइट, ये सारी चीज़ें। और ये क्या, इसने मुझे सिर्फ इसमें नहीं, एक कॉन्फिडेंस लेवल में मुझे बहुत सारा चीज़ में मिला। जैसे कि उस चीज़ के बाद मैं इतने साफ माइंड ये चीज़ फील करने लगी कि बहुत सारे ऐसे स्टेज को भी मैंने अपने कॉलेज में अटेंड किया उसके बाद। मतलब कि सिर्फ ना ही मैंने अपने बॉडी ये वेट को रिड्यूस किया, मतलब उसके बदले मैंने अपने कॉन्फिडेंट को मेंटेन किया। और सीरियसली इसने मुझे बहुत हेल्प किया, मैं यही जानती हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू मैम, मैम ने बहुत अच्छा बोला। सो कोई और आप लोगों में से कोई बोलना चाहता है? मैम ने इरादा किया था जीतने का, डेफिनेटली वो जीत गए। आपके लिए कुछ लाइन है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आप निखर गए, आपका मिशन सक्सेस हुआ। नाउ कम टू द पॉइंट। वीडियो में आपसे तो वीडियो में यही बताया कि फिजिकल फिटनेस के लिए हम कितना करते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहाँ पर मसाला पीसने के लिए सिलौटी हुआ करती थी, आज मिक्सी ने रूप ले लिया है। जिम जाकर पैसे लगाकर हेल्थ को कम करना आज फैशन बन गया है। नॉट ओनली दिस वन, मैनी एक्टिविटीज आर देयर जहाँ लेडीज लोग बैठ के बर्तन, आज हम भी, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग न्यू पैटर्न। ऐसा नहीं है, बट हमारी हरकतों ने ही हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। नीचे बैठकर जो काम होता था, आज मॉडर्न एज में मॉड्यूलर किचन में खड़े खड़े काम करना सिखा दिया है। इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज, हमें उसके आगे और उसके साथ साथ चलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जितना हम कर सकते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में, वी मस्ट इंक्लूड देम फॉर आवर हेल्थ। हमें अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी होता है कि यदि हमें सनलाइट में जरूर रहना चाहिए। उसमें से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, और हम बहुत हद तक अपनी हेल्थ को अच्छे तरीके का ला सकते हैं। और अच्छे पैटर्न को फॉलो करके, गुड डाइट्स को इंक्लूड करके,
है, इसमें सभी एलिमेंट्स को प्रेजेंट करके हम अपनी हेल्थ तक पहुंच सकते हैं। बशर्ते नेचुरली जितना अच्छा करेंगे उसका रिजल्ट हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। rather than taking pills and other activities, pills देखा या तो लेकर हम अपनी हेल्थ में डिक्रीज एंड इंक्रीज करेंगे, that will be harmful. So we must take care about our health and keeping the stamina of this training in our mind. We must take care of our health. Thank you so much. थैंक यू मैम, मैंने बहुत अच्छा बोला। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाई इज फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल? स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर बात करें कि फिजिकल एक्टिविटी से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। और हम लोग खासकर अगर लाइफ में किसको स्ट्रेस नहीं है, हम लोग सभी को स्ट्रेस है। अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, साथ ही साथ हम डिप्रेशन के तरफ नहीं जाते। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस इंक्रीज करने से, स्ट्रेस अगर बढ़ता है हमारे लाइफ में तो हमारा डिप्रेशन लेवल भी बढ़ता है। तो फिजिकल एक्टिविटी से हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से मेमोरी रिटेंशन होता है, हमारा मेमोरी शार्प होता है, हम चीजों को अच्छे समय तक याद रखते हैं, बहुत समय तक याद रखते हैं और हम अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। कैन इंप्रूव स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर। ये टेस्ट स्कोर कैसा है? ये टेस्ट स्कोर से हम क्या समझते हैं? जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं वो टेस्ट स्कोर नहीं, ये टेस्ट स्कोर हमारे पर्सनालिटी को बताता है। अगर हम फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट है तो हमारा ये पर्सनालिटी, अगर बात करें पर्सनालिटी का जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो इनहांस होगा, टेस्ट स्कोर इनहांस होगा। अगेन वन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आप लोगों को कुछ पेपर में दे रहा हूं, इस पेपर में कुछ फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर मूड स्विंग। आप अपने मूड स्विंग के हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं।
लोगों को एक पेपर पहुंच चुका है, आप उसको फिल कर लीजिए। मैं 5 मिनट्स देता हूँ उसके लिए आप लोगों को। होपफुली आप लोग सभी उसको फिल कर चुके होंगे। सभी का हो गया? Sir, please select all the pages. Now moving to our next slide, comprehensive school-based physical activity program। तो बेसिकली अगर बात करें कि फिजिकल एक्टिविटी जो स्कूल में कराया जाता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो नंबर 1, क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन। We must provide the quality physical education to all of the students। सभी बच्चे को एक क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन देना चाहिए। नेक्स्ट है डेली रिसेस पीरियड। ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रेक पीरियड होता है जिसमें हमको कोई भी, जैसे हमारे स्कूल में क्या है कि एक गेम्स पीरियड है, उस गेम्स पीरियड में हम लोग बच्चे को क्लास में या क्लास के बाहर फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं, मतलब वो फ्री रहता है, पढ़ाई से इंडिपेंडेंट होता है, एजुकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। एक्टिविटी ब्रेकआउट थ्रू अ डे, और जो ब्रेकआउट पीरियड होता है उसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाना है। नेक्स्ट है इंट्रामोरल स्पोर्ट्स। इंट्रामोरल स्पोर्ट्स क्या होता है? कोई भी बता सकते हैं कि इंट्रामोरल स्पोर्ट्स क्या होता है? एनी ऑफ यू, इंट्रामोरल स्पोर्ट्स क्या होता है? नाम सुने हो आप लोग? बोल सकते हैं वैसा स्पोर्ट्स या वैसा एक्टिविटी जिसको इंडोर्स में खेला जाए। इंडोर्स मींस दैट वाज बाउंडेड बाय
किसी चीज से बाउंड्री किया हुआ है उसके अंदर, तो सारा जितना भी लोग गेम्स जाते हैं नॉर्मली सारे को हम इस तरह के बाउंड्री के अंदर खेलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, these all sports are belonging from intramural sports। अपन में इंट्रामुरल स्पोर्ट्स छोड़ के भी क्या कोई सा स्पोर्ट्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैराथन ले लो आप, मैराथन में कोई फाउंडेशन नहीं होता है, मैराथन में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता है, मैराथन इंट्रामुरल स्पोर्ट्स में नहीं आता है। तो सवाल ऐसा है तो क्या रनिंग हो सकता है? बिल्कुल, रनिंग भी इंट्रामुरल स्पोर्ट्स में आता है क्योंकि उसका भी बाउंड्री सेटअप होता है, उसका भी बाउंड्री सेटअप होता है। नेक्स्ट है इंटर स्कॉलास्टिक स्पोर्ट्स। ये क्या होता है? नाम सुने आप लोग? सुने इंटर क्या होता है नाम? Scholastic sports are the sports which improves and enhances the scholastic areas of a child. That means the scholastic development of a child can be done through sports and activities and games which pertain and which relate to their brain development also. So any such activity, games or sports which is related to their development in the field of scholastic areas or co-curricular activity areas, those sports are called co-scholastic sports. Thank you मैम। एक्चुअली देखिए इंटर स्कॉलास्टिक स्पोर्ट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है, नियरेस्ट में कोई भी और स्कूल हो, 2-4 स्कूल हो, सब स्कूल मिला करके कंबाइन करके कोई स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो हमारे स्कूल के बच्चे, अदर स्कूल के बच्चे सब एक साथ पार्टिसिपेट करें और वहां पे उस इवेंट्स के दौरान जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड प्राइज के अकॉर्डिंग होता है। तो दीज स्पोर्ट्स आर इंटर स्कॉलास्टिक स्पोर्ट्स। वॉक एंड बाइक टू स्कूल प्रोग्राम, वॉक और बाइक टू स्कूल प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टाफ वेलनेस एंड इन्वॉल्वमेंट। स्टाफ वेलनेस, स्टाफ वेलनेस का मतलब ये होता है कि जो हमारे साथ, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे फॉर्म में साथ में काम कर रहे हैं, उनका भी फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, ये तीनों होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स को मतलब बोलते हैं कि अगर स्पोर्ट्स कराते हैं बच्चे को तो उनके पढ़ाई पे ये इफेक्ट करता है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम उससे दूर रहो। बहुत पेरेंट्स का ये भी मानना है कि नहीं, तुम पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी इंगेज रहो। फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फिजिकल एक्टिविटी ये बताता है हमारा बिहेवियर, हाउ आई बिहेव। फिजिकल एक्टिविटी ये बताता है कि मैं क्लासरूम में कैसे हूँ, बच्चे क्लासरूम में क्या करते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है क्लासरूम के लिए। तो ये सारा एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी है। और फिजिकल एजुकेशन ये है कि हम अपने बिहेवियर को इनहांस कैसे करें, हम अपने बिहेवियर को कैसे सुधारें। हमको फिजिकल एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे सुधारें, फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे इनहांस करें। प्रोवाइड स्टूडेंट विद द स्किल्स नीड टू पार्टिसिपेट इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी। मींस ये सब अगर बात करें कि जितने भी बच्चे होते हैं, सभी बच्चे का फिजिकल एक्टिविटीज अगर बात करें तो सभी फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज रहना चाहते हैं, बट उनका डिफरेंट वे होता है सोचने का। कुछ लोगों को लगता है क्रिकेट इज द बेस्ट, कुछ लोगों को
अच्छा है, सारा गेम अच्छा है, बट इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बच्चे को जिस गेम्स में, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसी के लिए वो अपने क्वालिटी, उसी सब्जेक्ट के लिए अपने क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, उसी गेम्स के लिए अपने क्वालिटी को वो इन्हांस कर सकते हैं और उसमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू हिज और हर विल, उसके अकॉर्डिंग गेम्स को डिसाइड करना चाहिए कि किसके लिए क्या बेहतर है। What is the quality physical education? Opportunity to learn, adequate time equipments and facilities, high quality certificate, certified or licensed teacher. तो फिजिकल एजुकेशन का में क्या क्या ये क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि टाइम इन्फॉर्मेशन, टाइम को कम से कम लगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हो वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे साथ फिजिकल टीचर जो हमारी है वो बहुत अच्छी है। तो मैम उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सभी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर वेरी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। और अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ साथ टीचर्स को भी फिट रहना चाहिए एंड स्टूडेंट्स को भी फिट रहना चाहिए। हम लोग एक लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इस सेशन का, ठीक है। सो ये एक्टिविटी का नाम है म्यूजिकल चेयर। आप लोगों को करना क्या है, अपने टेबल के अलाउंग पूरा एक सर्कुलर राउंड लगाना है। सर्कुलर राउंड लगाना है, म्यूजिक चलेगा और जैसे म्यूजिक स्टॉप होगा आप अपने चेयर पे बैठ जाएंगे। होपफुल मैं सोचता हूँ कि आप लोग इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो प्लीज स्टैंड अप, सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। मेरा ब्राउन चेयर है, कोई नहीं बैठेगा इसमें। मैं चाहता हूँ कुछ लोग हमारे पास आए, आ जाइए सर, आप भी आ जाइए सर बस सर, आप भी आ जाइए। कम कम होता है। जितने लोग हैं उनसे एक कम होना चाहिए, धीरे धीरे ये कम होता है। ये पॉज है ना? डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई वोल्टेज सॉन्ग साइबा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूजिकल चेयर राउंड। So please clap
राजीव सर को नेक्स्ट सेशन के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। सर प्लीज कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन। A hearty good morning to all of you present here to attend this one-day in-house training on the topic child development. I will begin today's session by extending my special thanks to our team, our respected principal sir, Mr. Anupam Naik, for giving me this opportunity to take pride in conducting this lesson. Now, I begin with my topic, child development. Now, basically, my topic today is child development. Can anyone in this room tell me about child development? What do you understand by child development? Please, ma'am. डेवलपमेंट जो है रिफर करता है कि बच्चे ने कितना नॉट ओनली फिजिकली मेंटली को कितना डेवलप किया है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है जहां एक तरफ ग्रोथ का क्राइटेरिया होता है कि उसकी हाइट इतनी हो गई है, उसकी वेट इतनी है, लेकिन डेवलपमेंट का इस तरीके से मेजरमेंट नहीं है। सिर्फ हम उसको ऑब्जर्व करके ही पता कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। Thank you, ma'am. Very well said. Please give a clap. Now, as ma'am has told that child development, basically child development can be defined as a process by which a child changes over time. Means over time means he can develop not only physically but mentally, emotionally, cognitively also. So physically, how can you tell that a child can develop physically? Physically means by doing some type of activity works or any type of the sports that is getting indulged that activities. Now, intellectual means by brain how many activities is performing, just like mathematical or reasoning activities he is involved in that. And social development means that he is indulging in activities like some quiz competitions, programs, or any type of the fests, or any activities that are committed in the society. Now, emotional. Child can be emotional in any way. Maybe he will be feeling very good, then he become happy. He become very sad when he gets distressed by certain activities. If he is not interested in the class, like that, जैसे बच्चे क्लास में खुश नहीं रहते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो कुछ बच्चे किसी टीचर से बहुत खुश होते हैं कि हमारे सर आ गए हैं, हमारी मैम आ गई हैं, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तो किसी बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, मे बी इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब क्या होता है, जैसे कि बच्चा सीखना चाह रहा है और टीचर अगर उसको अच्छे ढंग से समझा पाए तो उस चीज में उसकी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी, मतलब उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा और वो चीजों को और डेवलप करके और सीखने की कोशिश करेगा। और ये हुआ इंटरनली, जैसे इंटरनली आप अंदर से प्रेरणा खुद से लाते हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और एक्सटर्नली जैसे टीचर्स हो गए, बाहर से कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको देते हैं, वाह बहुत अच्छा काम किया, वाह बहुत अच्छा तुमने आज एक्सप्लेन किया इसको, कंसेप्ट अच्छे से आपने समझाया इस क्वेश्चन को। उसके लिए आप कभी क्लासेस में क्लैपिंग करवा देते हैं बच्चों को, उसे वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करता है और कोशिश करता है कि जैसे ही सर हमको कोई क्वेश्चन देते हैं तो इमीडिएटली हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और जल्द से जल्द उसको, छोटे बच्चे में खास कर ये चीज होता है कि जैसे ही क्वेश्चन दिया गया तुरंत वो लोग उठाते हैं पेंसिल और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और वो लोग अपने जगह पर नहीं रहते, सर 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 लाइक दिस वन दे यूज्ड टू
Sir, I will come first. I will come first. I have done this question. Please try to check this one. Something. We have to go and just check it. And if they have committed at this day, अगर वो लोग गलती करते हैं तो हम लोग को बोलना पड़ता है कि यहाँ आपकी यहाँ गलती है, आप इसको सुधारिए. और अगर वो सही करते हैं, we used to appreciate, we used to do some clapping for them, clap करवाते हैं बच्चों को, और any type of motivational speeches used to be, और we used to distribute some chocolates also or some gifts also, so that they can improve a lot. Now, what is child development? The sequence of several developmental stages like physical language development, emotional thought changes which occur in the child from birth to the adulthood are required to the child development. Mainly, I have just explained there are 4 development aspects here: physical, emotional, social, and cognitive. There are some stages that is given in this slide. Toddlers. Toddlers are the newborn baby. They used to cradle on the ground. Now, as they grow up, they used to go to school. That is the stage is called as the preschool age. Now, they grow older and then become teens. Now, why is child development important? Child development बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, या टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है कि बच्चों को चाइल्ड डेवलपमेंट करवाना? Can anyone explain this one? It is very important part of the study. Actually, we need both the sides of a child. When they develop in a both means emotionally, socially, physically, and all the aspects जब cover होंगे, तभी वही बच्चा आगे जाके डेवलप हो पाएगा, और उसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. और वो being a teacher, being a parent, and being a part of educational society, teachers can do the work very well. Actually, students जो हम लोग के पास रहता है, वो जो टीचर से सीखता है वही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और उस पर फेथ करके ही वो आगे बढ़ता है. दैट्स व्हाई चाइल्ड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड एंड फॉर आवर सोसाइटी. Now, child development. The study of how children master new skills. कुछ बच्चों को देखा जाता है कि वो आज कुछ सीखते हैं, अगर उसमें जागरूकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आज कुछ सीखे, आज आप लोगों ने कुछ होमवर्क दिया, कुछ एक्टिविटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए उसको, और बोला गया कि कल आपको उसको बना के लेके आना. इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो या अपने दोस्तों का भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस को कल सॉल्व करके तो बच्चे से इससे क्या होता है कि बच्चों में नए स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, और वो सोचते हैं कि किस ढंग से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन अपने टीचर से मिल सके. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 5 एरियाज ऑफ स्टडी. फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट. Physical development is muscles and use of the body. By doing certain activities, they can develop physically. Social development. Second one, social development, communication with the world. They used to interact with the society or the social norms that are being conducted in the society. Third one is emotional development. That is the expressions of feelings. How you feel. You can't just feeling is just as an intrinsic part. आप अंदर से किस ढंग से फील कर सकते हो, ये आप अपने इमोशंस का बता सकते हैं कि आप अच्छा उस समय फील कर रहे हो या खराब फील कर रहे हो या गुस्से वाला फील कर रहे हो, किस ढंग का. फोर्थ वन इज मोरल डेवलपमेंट. सेंस ऑफ राइट
जैसे एडोलेसेंस के समय ज़्यादातर देखा जाता है एडल्ट जब बच्चे 12 प्लस हो जाते हैं, तो उसमें उन लोगों में ये सोच हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं या हमें जो चीज अच्छा लगता है वो मैं करूंगा और वो चीज सही होगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जबरदस्ती हमें ये चीज मना करते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि बच्चे को जो मना किया जाता है वो लोग उसको सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये काम हम लोगों को क्यों मना किया जा रहा है ये नहीं सोचते हैं। ये इनके मन में लगा रहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन जरूर होगा। ये जानने की जरूर कोशिश करते हैं अपने गार्जियन से कि क्या इसके पीछे इसका रहस्य क्या है, क्यों हमें मना किया जाता है, और अगर ये राइट है तो हमारे लिए राइट क्यों है, और अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो इसको मॉडिफाई करके सही कैसे किया जा सकता है, इसके लिए बच्चे इसके बारे में सोचते हैं। एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट refers to learning, means development of the mind. Now, characteristics of childhood. आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग में क्या क्या चीजें, आप लोग क्या सोचते थे छोटे, जब आप छोटे थे तो आप क्या क्या चीज सोचते थे। जैसे मैं पहला वो बात करता हूँ कि जब छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे सोचते हैं उसमें इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, वो कुछ ना कुछ सोचते हैं। इमेजिनेशन children have vivid imagination and are able to create elaborate stories and place scenarios. जैसे हम लोग छोटे थे तो अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कहानियां सुनाया करते हैं, तो बच्चे के लिए ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम लोग कहानियों को सुने और उससे कुछ मोरल डेवलपमेंट सीखें। तो मैं एक टीचर से बोलूंगा कि अपने बचपन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जो आप छोटे बच्चों में आजकल देखते हैं कि छोटे बच्चों में जैसे हुआ इमेजिनेशन हो गया, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को सीखने की तत्परता बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे टीचर से कि चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कुछ बता सकते हैं प्लीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। मैं अपने बेटे के बारे में बताती हूँ, ठीक है। सेम कॉपी है मेरा, जैसे मैं बचपन में बदमाशी करती थी, सेम मेरा बेटा का रोल भी सेम ऐसे चीज़ है। खेल कूद में ज़्यादा, जैसे मैं स्टडी से ज़्यादा खेल कूद पे ध्यान देती हूँ, सेम मेरा बेटा भी खेल भी ज़्यादा ध्यान देता है। और इमेजिनेशन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं भी अपने दोनों बच्चों को ऑब्जर्व करके मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग भी आंसर देना चाहूँगी कि ये जो सेकंड पॉइंट है ना क्यूरियोसिटी, ये मैंने फील किया है और मैं देखती हूँ कि इतने ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे छोटे से मेरे एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बच्चों में नहीं है। ये हम प्रॉब्लम मैं देखती हूँ, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, अपना अपना वो है। तो क्या है ना कि ड्राइंग में उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये जो मूवी आई थी ना, मूवी से बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। बाहुबली मूवी आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें जो है आपका वो उसमें वो चूंकि ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उन लोगों को, और वो इतना क्यूरियस होकर के देखते तो एक एक चीज़ को वो डिटेलिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, बार बार मूवी को आई थिंक
कैरेक्टर के लिए उन्होंने प्ले किया है। क्या आप नाम बता सकती हैं? मैं भूल गई। बाहुबली अपोजिट में हाँ हलाल देव का जो कैरेक्टर है उसको जो दिखाया गया बहुत मस्कुलर रहता है और वो लड़ाई करता है और उसमें एक कैरेक्टर गुस्सा भी है शायद वो इमेज है। तो उसकी ड्राइंग करने के लिए उसको वो बार रिपीटेडली देखते हैं, ठीक है। और ये उसको देखने बारीकी से वो देखते हैं और उसके एक एक चीज को डिटेलिंग को वो रिप्रेजेंट कर देते हैं ड्राइंग में। तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चों में ये जो क्यूरियोसिटी वाली जो फीलिंग होती है ना ये बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से वो बहुत सारा चीज बहुत अर्ली एज में सीख लेते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट जो है ये प्लेफुलनेस, ये जो है बच्चे खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मेरा थिंकिंग मेरा ऑब्जर्वेशन डिफर करता है क्योंकि बच्चों का हर बच्चे को खेलने में मन नहीं लगता है। उसका जो एक इंटरेस्ट होता है ना, जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा कि आज के टाइम में मे बी ये इन्वायरमेंटल कुछ इसका इफेक्ट होगा कि उनको आज तक इंडोर गेम्स या फिर आपका दूसरा कोई काम करना पसंद है क्योंकि ये मोबाइल और चीज़ों का जो समय है उसकी वजह से बाहर का भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ट्रस्ट, हाँ ये चीज़ सही है कि बच्चे जो है ना किसी के ऊपर भी बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। किसी ने भी थोड़ा सा उनको पैम्पर किया, थोड़ा प्यार से बात किया और वो उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। और इसका मैंने देखा है, मेरे एक सोसाइटी में ही मैंने देखा एक बच्चे को उसके साथ कुछ बहुत खराब कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया इस ट्रस्ट की वजह से। तो ये बच्चों की क्वालिटी होती है, उनको थोड़ा सा कोई अच्छा उनसे बात कर लिया अच्छे से टॉफी दे दे तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं उस पर। और एंड नेक्स्ट इज लर्निंग, बच्चे जो होते हैं ना उनमें लर्निंग कैपेबिलिटीज जो है वो हम लोगों से भी ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को वो सीख जाते हैं। और अगर आप मैंने एज अ टीचर मैंने देखा है कि अगर आप उनको कोई चीज़ प्यार से समझाते हो तो उस चीज़ को और भी जल्दी सीख जाते हैं। एक चेंज मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान देखा था कि एक बच्चा बहुत ही बदमाश बच्चा था, वो मतलब हमेशा से क्लास डिस्टर्ब करना और आई थिंक वो 10-11 ईयर्स का बच्चा होगा। तो उसके अंदर मैंने देखा कि लर्निंग मतलब वो एबिलिटी है उसके अंदर लर्निंग की, लेकिन वो क्या कर रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा था, उसके बाद उसको धीरे थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने से, ठीक है, थोड़ा उसको चॉकलेट वगैरह जैसे अभी सर ने कहा कि आप उसको थोड़ा प्रेस कीजिए और उसके अंदर मैंने इतना चेंज देखा 1 मंथ में कि वो जो बच्चा जीरो फर्स्ट डे जिसने 0 मार्क्स लाया था उसका मतलब लास्ट 30 डेज कंप्लीट होते हुए उसका जो है वो 15 आउट ऑफ 15 इस तरह का मार्क्स आने लगा। ये सारे चेंजेस हम बच्चों में देखते हैं, बच्चों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड सबसे पहले इमेजिनेशन। जैसे छोटे में हम लोग पे बहुत सारे कहानियां सोचते थे, इमेजिन करते, जैसे कि कोई भी हमारे पेरेंट्स जब कुछ चीज सिखाते थे, हमारे पेरेंट्स जब कुछ भी हमें सुनाते थे कहानियां तो हम उस कहानी में ऐसे डूब जाते थे कि हम सोचते थे कि हम ही उस जगह पे खड़े हैं और हम ही बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं सबके सामने। तो उससे जो हमारे इंटरेस्ट कहानी को सुनने में वो और बढ़ जाती थी, क्यूरियोसिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी उससे। और क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, दे आस्क द क्वेश्चंस। बच्चों में अक्सर आप लोग देखते हैं वो क्यों, किस लिए, क्यों हुआ ऐसा सवाल, इसका जरूर जवाब वो पूछते हैं कि सर इसका आंसर ये क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है। ये क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, खासकर छोटे बच्चों में। प्लेफुलनेस अक्सर बोला जाता है छोटे बच्चों को लोग पढ़ाते हैं तो उन लोगों को खेल खेल में पढ़ाइए, कुछ एक्टिविटीज बना दीजिए। और अक्सर मैं कभी कभी अपनी क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि आपको 5 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चंस को बना के दिखाना है। जिस बच्चे ने मुझे दिखाया मैं उसको एक्सलेंट और वेरी गुड दूंगा और स्टार भी दूंगा। तो इससे क्या होता है, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सॉल्व करके दिखाते हैं,
उसे देखते हैं दूसरे बच्चे भी, उनके अंदर भी इंटरेस्ट आ जाता है कि हम भी कोशिश कर सकते हैं इसके लिए। तो एक मोटिवेशन हम लोग तरफ से दिया जाता है ताकि बच्चे अच्छा जितना हो सके अपने से आज से कल में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो ज़्यादा जरूरी है बच्चों में। नेक्स्ट है ट्रस्ट। जैसा कि मैंने जस्ट कहा कि ट्रस्ट मतलब विश्वास। किसी भी बच्चों से अगर ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं तो बच्चों आप पर विश्वास करते हैं कि कोई भी अगर किसी भी तरह का आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे टीचर हैं, हमारे पीछे वो खड़े हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे हो लाइफ में या हमारे फैमिली मैटर्स हो तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अक्सर कुछ बच्चे मेरे क्लास में हैं, वो अपने घर के प्रॉब्लम्स को भी मेरे पास लाते हैं और मुझसे शेयर करते हैं। अगर मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वो मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ कि मैं उस बच्चों को कोशिश करता हूँ अच्छा समझाने के लिए, और अगर मैं नहीं सॉल्व कर पाता हूँ तो आपस में शेयर करता हूँ ताकि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। और उनके गार्जियंस को बोलता हूँ काइंडली उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ना क्रिएटिविटी, बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पढ़ाई से ज़्यादा वो लोगों ने कोई क्राफ्ट एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो जाए, जैसे ड्राइंग हो गया, कुछ ड्राइंग हो गया, और कोई ऐसे पेपर कटिंग वर्क्स हो गए, और कुछ डेकोरेशन वाले कुछ पार्ट्स हो गए, फिर वीडियो आर्ट्स ड्राइंग्स और पेपर प्रेजेंटेशंस और एनी वीडियोस दे यूज्ड टू लाइक इट। उन लोगों को बहुत पसंद आता है कि वो अच्छे ढंग से उसको करें। पढ़ाई से ज़्यादा उसमें अदर एक्टिविटीज में ये लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और ये चीज़ एक खराब बात नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ अच्छा और कुछ नया चीज़ सीख सकते हैं स्कूल में या अपने रिलेटिव्स के पास में या नेबरहुड से। Now, emotional. Children experience a wide range of emotions and are not afraid to express them. They are able to show their love, anger, and sadness without reservation. हम लोग जैसे टीचर्स हैं, हम लोग अपनी खुशी या गम को छुपा लेते हैं, लेकिन बच्चों में ये चीज़ आप कम देखते होंगे। अगर वो बहुत खुश रहते हैं तो बोला जाता है कि बच्चे जब खुश होते हैं तो टीचर भी खुश होता है, आसपास का माहौल भी खुश होता है। लेकिन अगर बच्चे दुखी होते हैं तो आसपास का माहौल भी खराब होता जाता है। तो कहने का है कि वो बच्चे जो है वो खुल के जो भी काम करते हैं, कोई उनके अंदर ये चीजें छुपा के हंसना है या जो भी दुख करता है वो कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करने के लिए या अपने रिलेटिव से शेयर करने के लिए, ताकि वो हर समय हैप्पी रहे। और आप लोग देखते होंगे बच्चों अगर खुश रहते हैं तो आपको क्लास में भी अच्छा लगता है। Now, innocence. Children are innocent and pure. बोला जाता है बच्चों का दिल बहुत ही साफ होता है, प्योर होता है, और बच्चे बहुत ही innocent होते हैं। As a teacher, हम लोग बस एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए और प्रदर्शक की तरह काम करना चाहिए, ताकि हम उसे सही मार्ग दिखा सकें और जो उनके फ्यूचर है, जो उनका भविष्य है, हम उसको पॉजिटिव दिशा में बदल सकें। Now, the next topic is growth and development. Growth और development. ये दो वर्ड्स, दोनों डिफरेंट वर्ड्स। एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है जैसे कि आपका बॉडी का डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो और आपको फिजिकल
फिजिकल डेवलपमेंट है। अब एक चीज मुझे बताइए, आप लोग जैसे हम लोग जैसे बढ़ते जा रहे हैं, सब बोलते हैं कि बचपन बहुत अच्छा था, जो बचपन था वैसा जिंदगी आज हम लोग जीते हैं? एकदम नहीं। क्या बचपन वापस लौट के आ सकता है? नहीं, लौट के वापस नहीं आ सकता। लेकिन आपका एज जो है उम्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ग्रोथ वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको वापस पीछे नहीं आ सकता, वापस वो पीछे नहीं आ सकता। एक बार आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं वो वापस पीछे बैक नहीं आता। लेकिन ये डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कि आपका हर समय कुछ ना कुछ विकास होता जाता है। आप कुछ चीज सीखते हैं, फिर कोशिश करते हैं और चीज सीखने की। तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, जिंदगी भर जो आप चीज सीखते हैं उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। पर ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम बदलता नहीं है, मतलब वो बढ़ता ही चला जाता है, वापस आप उसको ला नहीं सकते अपने स्टेज पे। ग्रोथ means increase in the size, height and weight of the child. It implies growth of heart, brain, muscles and body in general. जैसे ग्रोथ मीन्स इंक्रीज, आपका जैसे वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, जैसे कि मैम ने बोला था बहुत अच्छे से कि आपका हाइट, साइज, जो भी चीज चेंजेस होते हैं उसे आप कह सकते हैं ग्रोथ। इट कैन बी स्पेशली ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। इसको आप फिजिकली आप देख सकते हैं, जैसे कि आपकी एज बढ़ती है, छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो वॉइस, आपकी आवाज में मोटापन आता है, आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करने लगते हैं, आपको मोस्टैचिस आते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे आप में फिजिकल चेंजेस होते जाते हैं। लेकिन आप इसे मेजर कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं ग्रोथ। लेकिन जब डेवलपमेंट के बारे में बात होता है, डेवलपमेंट में आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप वो देख सकते हैं कि आप में क्या चीज पहले कमी थी, उससे आप क्या चीज नया चीज सीख रहे हैं और आगे कैसे उसको आप बढ़ते हैं। Growth is defined as an irreversible constant increase in the size of the organs and even individual cells. It is irreversible. Irreversible means कोई बता सकता है? मैं? Please explain. Why we are told that growth is irreversible? If we are talking about difference between growth and development, then growth क्या होता है? वो one dimensional होता है, वो बढ़ते चला जाता है, वो कम नहीं हो सकता। But development के केस में क्या होता है कि वो एक ग्राफ होता है, कभी development ज़्यादा भी हो सकता है और कम। Thank you, ma'am. Growth is irreversible. Irreversible कब होता है? जैसे आप साइंस में पढ़ते हुए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल का मतलब होता है जैसे जो चीज आप चेंज किए हैं वापस उसको आप रिगेन कर सकते हैं। जैसे कि आप साइंस में पढ़ाते होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी ग्लास को बाय चांस गिरा दें, ग्लास क्या होता है? टूट जाता है। टूटने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं? स्टिक कर सकते हैं, वो चीज आपको वापस मिल सकती है। That is called as physical change. लेकिन केमिकल चेंज वो चीज होता है जो कि आप वापस उस चीज को नहीं ले सकते। जैसे कि एक बार आपका कोई रॉ मैंगो, कच्चा मैंगो है, वो पकने के बाद आप उसको खाते हो, वो टेस्टी लगता है। पहले कच्चे में जब वो रहता है तो वो खट्टा लगता है, लेकिन जब आप वो पकते जाता है तो क्या होगा? टेस्टी नहीं रहता। तो वापस वो चीज आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो वो एक तरह से केमिकल चेंज है जो कि इरिवर्सिबल चेंज है, वापस वो चीज आप नहीं ले सकते। लेकिन रिवर्सिबल में वो चीज आपको वापस कैसे वो चीज मिल सकता है। Now, growth is a change in quantitative aspect of our body. Quantitative means
कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसका कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट क्या होता है कि हाइट में कितना ग्रोथ है। जैसे आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे कितना ग्रो धीरे 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 करके हो गया और उसका हाइट बढ़ते जा रहा है सेंटीमीटर। तो आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं कितना उसका हाइट बढ़ रहा है पर डे और पर वीक और पर मंथ और पर ईयर। ठीक, changes that can be measured such as height, weight, size and shape of the body. इसमें आप हाइट मेजर कर सकते हो, उसका वेट भी मेजर कर सकते हो। वेट देखते हो कभी कभी आपका ओबेसिटी के चलते, मोटापा के चलते आपका वेट बढ़ते जाता है और फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद या कुछ ऐसे एक्टिविटीज करने के बाद आपका वेट घटते जाता है। तो वो चीज आप मेजर कर सकते हैं कि आप पहले कितने किलो के थे, कैसे थे और बाद में आप कितने के थे। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज टू टिल मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी तक ही ग्रो करता है ग्रोथ। Now development. Development refers to the qualitative change in the organism as a whole. Development is a continuous process. Development एक continuous process है। जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं, कुछ नए करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रोसेस जो हर समय चलता रहता है आपकी लाइफ टाइम तक। This is a continuous process through which physical, emotional, and intellectual changes occur. It is more wider and comprehensive terms than growth. It is also possible without growth. Changes will occur due to some illness or tiredness does not get the count under development. जैसे कि कभी-कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके चलते हमारा हेल्थ इश्यूज डेवलप होता है, मतलब चेंजेस हो जाते हैं, तो नुकसान होता है, हमारा वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होते जाता है। तो changes will occur due to the some illness or tiredness does not get the count in the development. Now, next topic is principles of growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस किस सिद्धांत पे ये डिपेंडेंट है। नाउ फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड डाउनवर्ड। एक्सक्यूज मी, प्लीज रीड दिस स्लाइड। इस स्लाइड को आप पढ़िए। Principle of growth and development. Proceed from the head downwards. This is called the Sandler's principle. This principle describes the direction of growth and development. According to this principle, of the children gain control head first, then the arms, and then legs. Infants develop control of the head and face movement with the first 2 months after birth. In the next few months, they are able to lift themselves up by using their arms. By 6 to 12 months of age, infants start to gain leg control and may be able to crawl, stand, or walk. Coordination of the arm always proceed coordination of the legs. Thank you, Mr. First one, the principle of growth and development. Development proceeds from the head downward. Head downward means this is the cephalopodal principle. Cephalopodal principle क्या होता है? This principle describes the direction of growth and development. ये बतलाता है कि हमारे growth और development किस directions में flow. According to this principle, the child gains control head first. First, जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो हेड से स्टार्ट होता है, सिर से पहले उसका डेवलपमेंट होता है। देन द आर्म्स,
उसके बाद हाथों का डेवलपमेंट होता है एंड देन द लेग्स। तो सिर से नीचे की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स। Infant develops control of the head and face movement within the first 2 months after birth. In the next few months, they are able to lift themselves up by using their arms. Now, second principle is development proceeds from the center of the body outward. This principle is proximodistal development. It describes the development of the development. This is the second principle of growth and development. This means, first of all, the spinal cord develops before outer parts of the means first the development will be of the spinal cord. ठीक जो आप बोल सकते हैं spinal cord की सबसे पहले development होगी, then the child arms develop before the hands. And the hands and the feet develop before the fingers. पहले arms का development होगा before the hands, हाथों से पहले, and the hands and the feet develop before the fingers. Feet develop होगा fingers से. Growth and development is a continuous process. ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार आप लोग जानते हैं कि वो प्रोसेस चलता रहता है, लाइफ टाइम जाता है। As a child develops, he or she adds to the skills already acquired and the new skill become the basis for further achievement and mastery of the skills. Most children follow a similar pattern. Also, one stage of the development lays the foundation for the next stage of the development. जैसे आपके डेवलपमेंट को बच्चे से डायरेक्टली आप बहुत एडल्ट स्टेज में नहीं पहुंचे, धीरे धीरे करके एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्टेजेस का डेवलपमेंट होता है। तो वो स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस डेवलपमेंट होता है और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर बच्चों का विकास उसी प्रोसेस में ही होता है, लेकिन कोई बच्चा आप देखते हैं कि कोई बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं पढ़ने में, कोई बहुत ही अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका आईक्यू कमजोर है। अगर उन्हें भी अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाए, अच्छे ढंग से तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। There are individual rates of growth and development. जैसा कि जस्ट मैंने बोला कि हर एक का डेवलपमेंट डिफर करता है। जैसे each child is different. हर एक बच्चे एक दूसरे से different है। And the rate at which the individual children's growth is different. Although the pattern and the sequences for the growth and the development are usually the same for all the children, and the rate at which the individual children reach developmental stages will be different. Rates of developments also are not uniform within an individual child. For example, a child intellectual development may progress faster than his emotional and the social development. Last line बहुत अच्छा लिखा है। Rates of development also are not uniform. Rates of development एक जैसे नहीं होते सारे बच्चों के लिए। For example, a child intellectual development may progress faster. बच्चों का मानसिक विकास ज़्यादा फास्ट होता है than his emotional and social development. पहले बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज़्यादा, बच्चे जो होते हैं वो दिमाग से ज़्यादा विकसित होंगे, उसके बाद उसमें इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। Now, nature and characteristics of development. I will request ma'am to be displayed. Nature and characteristics of development. Human development is a natural and social process. The process of human development continues throughout life. Human development consists of both quantitative growth and qualitative development.
Human development takes place in a particular sequence and the pace of development varies children's age level. Human development depends on heredity and environment. There is no limit to human development. Thank you. Human development. Human development is a natural and a social development. The process of human development continues throughout the life. जैसे कि डेवलपमेंट चलता रहता है, हम सब कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं. Human development consists of both quantitative growth and qualitative improvement. इसमें क्वालिटेटिव ग्रोथ भी होगा और क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटेटिव मींस आपका डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव and quantitative means growth. Human development takes place in a particular sequence and pace of development varies at different ages. आप अक्सर देखते होंगे कि एडोलेसेंस के समय या प्यूबर्टी के समय बच्चों का डेवलपमेंट काफी स्पीड से होता है और इन्फेंसी के समय में जब बच्चे शिशु अवस्था में रहते हैं उस समय में बच्चों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है. लड़कियों में खासकर प्यूबर्टी का समय 2 या 3 साल से ज्यादा होता है. Human development depends on heredity and environment. There is no limit of human development. कोई लिमिट नहीं है कि ह्यूमन कितना डेवलप कर सकता है. सीखने बोला जाता है ना, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है. हर समय कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए. Now, some difference between growth and development. Growth refers to the increase in the mass at the side of the body. Growth means आपका मास, वेट और साइज कितना आपका बढ़ रहा है या घट रहा है वो आपको बताता है, जो आपको क्वांटिटी बताता है कि आपकी क्वांटिटी या कितने लिमिट से आप बढ़े हो या घटे. और डेवलपमेंट refers to the qualitative changes in the functions. डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते. ये क्वालिटेटिव चेंजेस है जो आपको बताता है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो. डेवलपमेंट वो कंटिन्यूअस चला जाता है लाइफ टाइम एंड ग्रोथ स्टॉप एट अ सर्टेन एज ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे एडोलेसेंस के बाद आप अक्सर देखते हो कि आपका हाइट कुछ लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद स्टॉप होता है. आप हाइट में धीरे धीरे जितना लिमिट तक बढ़ना होता तक बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा एज आता है जहाँ पर आपका ग्रोथ रुक जाता है और उसके बाद आप धीरे धीरे आपका मोटापा ओबेसिटी बढ़ता जाता है. तो ग्रोथ वहाँ पे रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है. Growth can be measured. Growth in structural development is considered as functional. Growth points to changes in a specific phase or particular effect. Now we are playing one video here. Rapid development. It's a time when a child's brain is most open to the influence of relationships and experiences. At the same time, significant disturbances. The first 6 years of a child's life, beginning with the mother's pregnancy, is a time of great promise and rapid development. It's a time when a child's brain is most open to the influence of relationships and experiences. At the same time, significant disturbances in the child's life, such as trauma, neglect, and abuse, can undermine their development and lifelong health. The most important time for a child's brain development is during the mother's pregnancy and the early years. The brain is one of the few organs not fully developed at birth. At birth, a baby's brain can only control the most basic functions, those that keep the heart beating, the lungs taking in air, and the sucking reflex, which
which allows the baby to feed on the breast or bottom. Over the next 2,000 days, from 0 to 6 years, the child's brain will learn its more complex functions, which include memory, speech and language, comprehension, emotion regulation, planning, and decision-making. By understanding how the brain develops, you'll be able to understand the child, respond more effectively to their needs, and build a foundation for a child's physical, social, emotional, and mental health. Let's learn more about a child's developing brain. The brain starts to form very early in the mother's pregnancy. Babies are learning even before they are born. The child's brain development is affected by both nature and nurture. Nature refers to all genetic and hereditary factors. What the child is born with, their inherited traits and abilities. Nurture refers to all environmental factors. What the child experiences, their environment, the care they receive, and the relationships they have with people and their community. Even though the newborn's brain architecture contains billions of neurons, only a small number of them are connected. The brain of a newborn baby is basically a disorganized bundle of nerves that need to be connected and wired together for the brain to be able to communicate with other parts of their body. A child's everyday experiences and relationships with their parents and caregivers create brain connections. This process is called serve and return. Serve and return refers to the two-way, back-and-forth interactions between the child and the responsive adults. To understand the concept of serve and return, imagine a game of tennis. A child serves when they reach out for interaction. When they smile, babble, or cry, responsive parents and caregivers can return the serve by smiling back, playing peekaboo, or offering comfort with a hug. The more positive serve and return experiences they have, the stronger the child's brain connections become. Thank you, sir, for nice video. Now, I would request one teacher to just explain what you get from this video. आप इस वीडियो से क्या समझे? मैम, प्लीज. इस वीडियो में बच्चे के जन्म से लेकर के बड़े होने तक का ग्रोथ दिखाया गया है। बच्चे जब माँ की गर्भ में होते हैं उस समय भी उनका जो मानसिक संतुलन, उनका जो ग्रोथ होता है वो उसी समय से होने लगता है और आगे भी जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद भी वह ग्रोथ करने लगते हैं। थैंक यू मैम. वीडियो से ये जानना कि जो बच्चे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिर उसके बाद भी, ठीक है, डेवलपमेंट उनके उस पीरियड में भी होता है, ऐसा नहीं उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती, जैसे ही बच्चे होते हैं फिर उसका डायरेक्शनल ये होता है, जैसा कि आपने बोला सिफोलोपार्ट, ठीक है, प्रॉक्सिमल क्या होता है, इसमें पहले ग्रोथ होता है हमारे ब्रेन का, उसके बाद वो एक डायरेक्शनल जो होता है हेड टू डाउनवर्ड, देन उसके बाद प्रॉक्सी मॉडल आता है। प्रॉक्सी मॉडल में क्या होता है कि वो आपका इंटीरियर से लेकर वो आपके इंटीरियर से एक्सटीरियर के डायरेक्शन में जाता है, तो इस तरह हर बच्चे का ग्रोथ होता है। Very good. Now, where is it, man? Now, factors influence डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, इन्फ्लुएंस कौन उसको काम करने की मदद करते हैं. जैसे डेवलपमेंट, फर्स्ट वन इज नेचर एंड सेकंड वन इज नर्चर. नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अपने आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे जैसा वातावरण होता है, कैसा है, हम अगर अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो अच्छी चीजें सीखते हैं, लेकिन अगर खराब वातावरण में रहते हैं तो गलत चीजें सीखते हैं, गलत काम कर सकते हैं और हाँ उस सब चीजों का असर
कि हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। एंड नर्चर, नेचर एंड नर्चर। नर्चर में जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल कैसे कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण कैसा हो रहा है, वो सारी चीजें डिपेंड करता है। तो दोनों अपने ऊपर मतलब एक दूसरे, जो एक टॉपिक है नेचर और दूसरा टॉपिक है नर्चर, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। नेचर के बदले में नेचर की जगह अगर नर्चर रखा जाए, नर्चर की जगह नेचर रखा जाए, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नेचर इज व्हाट वी थिंक, दैट इज वी आर गेटिंग जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स की आईज अगर ब्राउन है तो बच्चे के भी आईज ब्राउन होने की संभावना हो सकती है, ब्लू है तो ब्लू होने की संभावना हो सकती है। आपके पेरेंट्स के हेयर स्टाइल कैसे है, जैसे उनका हेयर स्टाइल है आपका भी हो सकता है। तो आपने अपने एंसेस्टर्स से क्या लिया है, आपने अपने पेरेंट्स से क्या किया है, वंशानुक्रम होता है। हाँ, जेनेटिक्स, ये वंशानुक्रम होता है। जेनेटिक्स पर तो डिपेंड करता है। वो सारा चीज आप बोल सकते हैं नेचर के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। दूसरा है नर्चर। नर्चर इज जनरली टेकन एज द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आफ्टर कंसेप्शन। एग्जांपल, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोजर, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे आप अपने पास अच्छे बच्चे रहते हैं, अच्छे बच्चों के साथ खेलते हैं, आपके पेरेंट्स आपके सामाजिक वातावरण होता है। सामाजिक वातावरण, मैम सामाजिक वातावरण से आप क्या चीज सीखते हैं वो हो गया आपका नर्चर। द नेचर नर्चर डिबेट इज कंसर्न्ड विद द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन दैट बोथ इन्फ्लुएंस मेक टू द ह्यूमन बीइंग। अब मैं एक एक्टिविटी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ टीचर्स को बुलाना चाहूँगा। एक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, इसमें मैं दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टीचर्स को। ये बेसिकली आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, इसमें हेरिटेज और एनवायरमेंट एक टॉपिक को मैंने अभी बताया है आपको। इसमें इन्वायरमेंट आपको देखना होगा कि एक बच्चा गांव में रहता है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन बहुत रूरल एरिया में रहने के चलते उतने पैसे नहीं होने के कारण उसका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक बच्चा शहर में रहता है, शहर में अर्बन एरिया में उसका सब चीज फैसिलिटीज है, उसको प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए अच्छे टीचर भी ट्यूशंस के लिए हैं, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल है, अच्छे दोस्त है, लेकिन उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो एक तरफ मैं देखूंगा कि आपको फैसिलिटी मिलने के बाद भी आप में वो इंटरेस्ट है लेकिन आप उसको सीख नहीं पाते हैं। लेकिन एक तरफ में आप देखिएगा कि फैसिलिटीज मिलने के बाद भी वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये एक एग्जांपल होगा नर्चर के लिए कि आपका इन्वायरमेंट आपको कैसे मतलब डिफर कर सकता है, मतलब आपका डेवलपमेंट किस ढंग से हो सकता है उसके लिए। तो मैं कुछ टीचर से बुलाना चाहूँगा, इधर वाले लोग रहेंगे रूरल एरिया के लिए, गाँव वाले लोगों के लिए, और इधर वाला रहेगा शहर वाला। प्लीज some teachers please come here. सीमा, सीमा, क्या कर रही हो? हाँ माँ, पढ़ रही थी। जाओ जाके झाड़ू लगाओ। हर समय पढ़ाई। हो गया माँ, हो गया। सीमा, सीमा, हाँ माँ, जाओ बाबा को खाना लेके आओ। खाना लेके आना है। जाओ।
मम्मी बना दो? नहीं नहीं मम्मा। पास्ता? ओके मम्मा। देखते हैं नेहा क्या कर रही है। नेहा, हाँ मम्मा। आज तुम्हारी मैथ्स टीचर आई थी? यस मम्मा आई थी और उन्होंने कहा ना कुछ बुक्स वगैरह लाने हैं और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी ये करने को कहा है। तो क्या मम्मा आप मुझे ले दोगे? हाँ सब ला देंगे। अच्छा और शेड्यूल में देखना था और कंप्यूटर की क्लास कब है और हमारी बाकी सब क्लासेस कब है, सर लोग सब आते हैं सीखते हैं, इसमें मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मा, कंप्यूटर वगैरह ये सैटरडे को हर सैटरडे ये किया है सर ने क्लास प्रोवाइड करने को कहा है। तो हो जाएगा मम्मा। आप तो कंप्यूटर हमारे पास करता है, तुम्हारे लिए लैपटॉप दे दें? ओके मम्मा। मोबाइल तो है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू मम्मा। ओके थैंक यू फॉर स्टडी, वेरी गुड। ओके मम्मा। लगता है टीचर्स लोग ठीक पढ़ा रहे हैं। नेहा का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा कर रही है। इंडियन में जाके भी देख लेंगे क्या इसके टीचर्स का रिव्यू होता है, लेकिन बीच बीच में देखते भी रहना चाहिए कि क्या कर रही है नेहा। कहाँ से बस है नेहा? नेहा क्या कर रही है? क्लासेस देख रही हूँ मम्मा, सर ने ऑनलाइन भी ये किया था तो ऑनलाइन वाला क्लासेस देख रही हूँ। किस सब्जेक्ट में है? मैथ्स में है मम्मा। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है, वाह वाह नेहा, वेरी गुड। ओके मम्मा। ओके मम्मा, कल मेरा एग्जाम है तो मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया। मुझे लगता है 1 घंटे और जागना पड़ेगा रात में। तो हम भी बैठ जाते हैं तुम्हारे साथ में। आप सोने जाएं? मम्मा आप सो जाओ, मैं फिर लूंगी। पक्का? मोबाइल को कुछ और नहीं देखना, सिर्फ पढ़ाई ही करना। ओके ओके मम्मा आप सो जाओ। गुड नाइट मम्मा। मम्मा सोने से पहले एक बार मुझे एक बोनविटा दे देना प्लीज। और खाएगी क्या? नहीं खाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा? नहीं मम्मा। अच्छा बिस्किट का डिब्बा रख देते हैं, खाएगी तो खा लेना, ठीक है? ओके ओके ओके, ये बोनविटा तुम्हारा, पियो और अपना काम करो, ठीक है? ओके मम्मा। नेक्स्ट मम्मा, आज मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मम्मा और सारे राइट हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अभी ये जो सर आएंगे ना, सर से पूछ लेना और दिखा भी देना। मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना है, तुम कंटिन्यू करो अपना, ठीक है? ओके मम्मा। ओके ओके। थैंक यू। इसमें 2 पार्ट्स दिखाए गए हैं, एक है रूरल और एक है अर्बन एरिया। रूरल एरिया में गांव के जो बच्चे थे, इसका पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट है। पढ़ने में इंटरेस्ट होने के चलते भी वो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। मतलब कुछ ना कुछ घर के इतने सारे काम हैं, जैसे कि फील्ड में जाके काम करना, खेतों में जाके काम करना, पेरेंट्स के साथ, फिर घर के और काम में छोटे बड़े बच्चों का देखभाल करना, उसके चलते भी कुछ बच्चे ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो पेरेंट्स को यहाँ पे सोचना चाहिए कि बच्चे किस ढंग से अच्छे से पढ़, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें भी टाइम देना चाहिए। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चों का कैसे डेवलपमेंट, विकास कैसे है, उनको उनके साथ में एज अ फ्रेंड की तरह काम करना चाहिए, दोस्तों की तरह काम करना चाहिए और जहाँ भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व आउट करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें अर्बन एरिया में, जैसे कि बच्चों को अक्सर आप देखते हैं कि मोबाइल लैपटॉप देने के बाद भी बच्चे ठीक ढंग से पढ़ते नहीं हैं। हो सकता है पेरेंट्स के पास में वो पढ़ते भी दिखाते हो, लेकिन ठीक ढंग से पढ़ते नहीं है। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं, किसी किसी में इंटरेस्ट होता है। अक्सर देखा जाता है कि अर्बन वाले जो एरियाज वाले जो लोग होते हैं, अक्सर अर्बन एरियाज में बच्चे लोग को सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, लेकिन उनमें पढ़ने की रुचि कम रहती है।
कम करने के चलते वो कभी कभी पेरेंट्स से छुप करके अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं या कोई भी छुपा के गेम्स खेलते हैं या कुछ ऐसे साइट्स वगैरह जो आप सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करते हैं जिसमें आपके इंटरेस्ट होते हैं, तो पढ़ाई को साइड करके वो सारे एक्टिविटीज करते हैं, जिसके कारण उनको नंबर्स भी कम आते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट, दो तरह के इन्वायरमेंट्स हो रहे हैं। एक गांव का इन्वायरमेंट, वहाँ पे बच्चे कभी कभी गांव के भी बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं कि अगर हमने पढ़ना है तो इससे कोई पढ़ने नहीं देंगे। कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे आप देखते हो गाँव में कि अगर हम नहीं पढ़ते तो कोई पढ़ने नहीं देंगे, चलो यहाँ से चलो खेलते हैं। तो ये चीज कभी कभी गलत भी हो सकता है और आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए उस समय क्या चीज बेनिफिशियल है। अगर आपको खेलना उस समय है, आप जरूरी नहीं कि आप हर समय पढ़ते ही हो, पढ़ने के साथ साथ खेलना, फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब मैं उन टीचर्स से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा जो आप लोग अभी एक्टिविटीज प्रेजेंट किए हैं, कुछ 2 वर्ड्स उनके बारे में आप लोग बताइए। मैं स्टार्ट करूँगा रूरल एरियाज वाले से, जो आप लोगों ने अभी एक्टिविटीज प्रेजेंट किया है, काइंडली उसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो एक्टिविटीज अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि रूरल एरिया में किस तरह से ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल एरिया में नहीं है, हमारे अर्बन एरिया में भी कुछ घरों में ऐसा होता है। और मैं बहुत क्लोजली मैं इस चीज़ को रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, इस चीज़ को मैंने किया है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो हम लोग गांव से बिलोंग करते थे, जिस गांव से, वहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा ये था कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसको एजुकेशन से क्या मतलब, उसको एजुकेशन नहीं देना है। और हमारे अर्ली मैरिज की प्रॉब्लम जो कि अभी 5 और 6 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो उस एरिया में अभी भी रिसेंट 5 ईयर्स 6 ईयर्स पहले तक भी वो अर्ली मैरिज वाला वो कल्चर था, ठीक है। वहाँ पे आप बहुत अच्छे फैमिली में देखोगे ना, तो उनके यहाँ पे जो गर्ल्स होती है ना, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई, मैंने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया और अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और वहाँ पे हमारे गांव में मैं आपको बोलूँ तो मे भी कि आप बोलोगे कि ये इस सेंचुरी में तो ये मैम पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे उस एरिया में अभी भी, मतलब मेरे जनरेशन में मैं एक लौती हूँ अपने गांव में जो मास्टर्स कंप्लीट कर पाई है। हमारे फादर जो थे ना, वो थोड़े बाहर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी थिंकिंग पढ़ाई को लेकर के अलग थी। उन्होंने भी गांव से लेकर के वो हमेशा शहर आए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। और हम लोग 5 भाई बहन में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी दोनों बहनें जो हैं, हम तीनों बहनों का अर्ली मैरिज का वो प्रॉब्लम है, हम लोग सभी का अर्ली मैरिज हुआ। मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो जब यहाँ आई, स्कूलिंग उनकी शुरू हुई, 4 ईयर्स वो स्कूलिंग अपने कंप्लीट नहीं कर पाई, उनकी मैरिज हो गई, ओनली 14 ईयर्स। और वो इतनी तेज थी पढ़ने में, वो अपने घर के सारे काम करती थी, मम्मी को हेल्प करवाती थी, खेत में भी गई है। इतना सब करने के बाद भी और इतनी तेज होने के बाद भी उनको पढ़ाई कंप्लीट नहीं करने दिया गया और बहुत ब्रिलियंट थी। सेकेंड जो हमारी सिस्टर है, उन्होंने +2 का एग्जाम दिया शादी के बाद। और फिर मेरी भी जब मैरिज हुई थी तो मैं भी 11th करके और मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरी पढ़ाई में मेरी एजुकेशन रुक गई थी। फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस बने कि मीन्स कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, और वो उतनी तक पढ़ाई करना मेरे लिए, किसी के लिए पढ़ाई करना बहुत ईजी होता है। आजकल इतनी फैसिलिटीज मिलते हैं अर्बन एरियाज में कि आपको अच्छे स्कूल प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ट्यूशंस और स्कूल से इतने सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट करती है। बट हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था। हमारे लिए इतना मुश्किल था ना कि एक डिग्री, एक क्लास को क्वालिफाई करना और उसको अचीव करना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है वो पीरियड। मैं उसको देखती हूँ तो मैं समझती हूँ मेरी लाइफ के सबसे बड़े जो स्ट्रगलिंग वो टाइम रहे हैं। और मैं लेट भी आई इसकी वजह से, इस
जो जनरेशन है कि आपको मौका मिल रहा है ना, तो आप उसको फायदा उठाइए उसका अपने लाइफ में। आप अभी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसका एक आज मैंने पढ़ाई की तो मैं अपने अगले जनरेशन में मैं देखती हूँ कि अगर मुझे कभी ये मौका मिले तो मैं ये चेंज जरूर लाना चाहूँगी कि मैं किसी एक बच्चे को या किसी को मैं सपोर्ट कर पाऊँ उसके एजुकेशन में, क्योंकि इतनी मुश्किलें आती है ना विदाउट एजुकेशन। उस चीज को जो फील जिसने उसको महसूस किया है, जो वो झेलता है ना, उससे आपको बुक नहीं मिल रही है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बाहर आपको कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इकोनॉमिक कंडीशन। और एज अ वीमेन मैंने देखा है कि अगर आप बड़े हुए हैं तो कुछ तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में कर लोगे, आपके अपने आप सपोर्ट कर सकते हो। कभी कभी हम लोगों के फैमिली में ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जब हमें पैसों की बहुत जरूरत होती है और हम कैपेबल नहीं होते ना, हाउस वाइफ हम लोग जो कैपेबल नहीं हो पाते हैं, और कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं ना, बहुत ही खराब स्थिति रहती है उस समय में। और उस जगह पे अगर कुछ अपने अंदर नॉलेज होता है, कुछ भी हम करने में कैपेबल होते हैं, तो हम अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा हेल्प का काम करते हैं, ठीक है। और चूंकि ये जो गांव की जो रूरल एरियाज की जो आपने प्रॉब्लम बताई है, उसमें क्या है कि ये जो अर्ली मैरिज वाली प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम और भी ज्यादा से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने देखा कि हम लोगों के वहाँ पे एजुकेशन का माहौल नहीं है, तो और अर्ली मैरिज की प्रॉब्लम है। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत अर्ली एज में विडो हो गई है कोई महिला, और विडो होने की वजह से क्या है, उनके 2 या 4 बच्चे हैं, और उनको कैसे सर्वाइव करेंगे, पूरा जीवन कैसे उनका चलेगा, इसका कोई भी मतलब अल्टरनेटिव मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं जो रूरल एरिया वाला जो प्रॉब्लम था, तो मैं चाहूँगी हम सभी और जो भी हमारी सोसाइटी में सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चे के एजुकेशन पे काम करना चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया से हो या अर्बन एरिया से हो। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now next for urban areas, ma'am. जो भी ये था, उससे ये चीज़ जानने को मिलता है कि जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया का डिफरेंसेस, कुछ तो रिसोर्सेज के कारण नहीं कर पाते, कुछ अपने कल्चर के कारण नहीं कर पाते। और यहाँ जो कहें शहरों के तौर तरीके जो होते हैं, उसमें एक कॉम्पिटिशन रहता है जिसमें पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व रहते अपने बच्चों के साथ। जैसा आपने देखा, जैसे मैम ने मेरी मदर का रोल किया, तो उसमें मैं सिर्फ इन्वॉल्व नहीं, और ये मैं भी जानती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मेरे जितने भी एजुकेशन के पीरियड में मेरे से ज़्यादा टेंशनाइज मेरी मम्मी रहती थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ बेटा मुझे टाइम पे हर चीज़ मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही है, प्रोवाइड हो रहा है, ट्यूशन हो रहा है, क्लासेस हो रही है, ये सारे चीज़, ये सारा एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर बहुत केस में ऐसा भी होता है, देखा जाता है कि हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद, जब हमारे पेरेंट्स सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है, उस चीज़ की कैपेबल, मतलब उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते, पहुँच नहीं पाते वहाँ तब पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट होती है, बच्चों को भी होती है। बहुत बच्चे उस चीज़ को माइंड पर नहीं लेते, बहुत लेते हैं तो आगे और सीखते हैं, नहीं लेते हैं तो फिर वैसे ही रह जाते हैं। और यही अगर बात करें कि अगर आप गांव के एरिया की बात कर रहे हो, तो गांव के एरिया में क्या होता है कि बच्चे करना भी चाहते हैं, मगर उनके कल्चर, उनके घर का जो रिचुअल और कल्चर कहते हैं, वो उन्हें करने को अलाउ नहीं करते, चाहे उनके अपने पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। जैसे मेरी कज़न है, ठीक है, तो आज मैं मैरिड नहीं हूँ, बट मेरी ही सेम एज की वो है, मेरे पापा के छोटे भाई की बेटी सेम एज की है, बट आज उसके 2 बच्चे, और उसकी एजुकेशन 10th तक की रह गई, वो भी 10th उसने लड़के पढ़ा अपनी मम्मी से, बट मेरी मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट किया। यही डिफरेंसेस है जगह में, और यही डिफरेंसेस है जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी के पेरेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं कि तुम्हें घर का ही करना, एक ये कल्चर उन्हें देते हैं कि जो मैं करके आ रही हूँ वो आपको करना है,
एम्बिशियस होते हैं कि आपको वो करना है जो मैं नहीं कर पाई। एक चीज जो है बोलना चाहेंगे कि आजकल जो अर्बन एरियाज का है उसमें दिक्कत ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग टू मच टू द चिल्ड्रंस एंड टू मच कंफर्ट। तो उनको चीजें तभी लेनी चाहिए जब जरूरत से पहले चीजें ले लेंगे तो वो वैल्यू नहीं करते हैं और वो इस वजह से थोड़ा आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले। तो अगर वो हम चाहते हैं कि उनको सिखाएं या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले उन चीजों को, तो पहले मेहनत करने दें, उसके बाद वी विल प्रोवाइड देम बेनिफिट्स। तो ये एक चीज। Thank you, ma'am. Very well said. Now, दोनों मैम ने बहुत अच्छे से कि इन्वायरमेंट और इंटरेस्ट दोनों बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। Now, the next topic is factors affecting growth and development. क्या factors responsible है for growth and development? Growth के लिए और development के लिए क्या factors responsible? First, growth is natural and automatic process. Growth जो है वो natural है, आप लोग जानते हैं, जैसे कि heredity, अनुवांशिकता, hereditary factors, the heredity or genetic factors determine the potential and the limitations growth and development. Hereditary is the form of genes or the chromosome, जो genes और chromosome हम लोग को अपने parents से द्वारा हम लोग को बर्थ के समय जो मिलती है, तो उसके चलते बहुत सारे हमारे ग्रोथ रेट में डेवलपमेंट्स होते हैं। That is, the size and the shape of the body differs, colors of the eyes, skin and hair, nervous systems also are deeply influenced by the hereditary systems. तो ग्रोथ जो होगा एक तरह से जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और डेवलपमेंट इज प्लान्ड एंड डेलिबरेट एफर्ट्स टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस अमंग द चिल्ड्रन। और डेवलपमेंट जो होगा वो बेसिकली प्लानिंग्स पे डिपेंड करता है कि किस ढंग से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मींस डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हमें दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो हेरिडिटी जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलती है, हमारे जेनेटिक होती है, और एक हमारा एनवायरनमेंट कि हम कैसे एनवायरनमेंट में पल रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे दोस्त कैसे, हमारे पेरेंट्स के बीच आपस में सब ठीक तो है। ऐसा नहीं कि अगर अनबन हो रही हो, घर में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स के बीच अनबन हो रही हो और वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता। चाहे आप उसे कितने भी परफेक्ट एजुकेशन के लिए आप डाल दो किसी भी अच्छे स्कूल में, बट घर का एनवायरनमेंट सही ना हो तो एजुकेशन के डेवलपमेंट वगैरह कुछ सही नहीं हो। तो यही है। और दूसरा हेरिडिटी सेज दैट कि आपका जो है वो कहीं आपके पेरेंट्स अगर कुछ ऐसा कोई भी, मैं इस टर्म के बारे में कहना चाहती हूँ एज अ टीचर कि अगर आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा कंज्यूम करते हो या कुछ भी बुरी आदत भी हो तो वो भी बच्चे के ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर असर करेगी। तो इसीलिए कहते हैं बी हेल्दी। थैंक यू मैम, राइट से second factor is environmental factor. Environment in which an individual is born and brought out determines the pattern and the growth of the development plan. Environment is everything except his or her genes. This factors gives direction to the genetic potential of growth and development of an individual. Now nutrition. Nutrition बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है हमारे हेल्थ कि हम कैसा, हमारा देखभाल कैसा किया जा रहा है, हम लोग खाने में क्या चीज बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हैं। बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स के लिए आप लोग कैसे जानते हैं? न्यूट्रिएंट्स में जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट,
वाटर एंड रफेज। ठीक है, तो मेनली आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट हो। फिजिकल डेवलपमेंट अगर होगा तो साथ साथ में कॉग्निटिव भी होगा, और अगर आप एक्सट्रिंसिक रहते हैं मतलब दोस्तों से घुलना मिलना या सोशल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो आपका अच्छा डेवलपमेंट होगा उसके। नाउ हार्मोन्स you must be knowing that hormones belong to the endocrine system and influence the various functions of the body. Hormones secreted from different glands. Hormones जो होता है वो secrete किया जाता है हमारे बॉडी में ताकि हम बहुत सारे हमारे बॉडी में इंटरनल फंक्शंस होते रहे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। Hormones secreted from different glands that are situated in a specific part of the bodies and control many of our body functions ताकि हमारा बॉडी अच्छे ढंग से फंक्शन कर सके। तो हार्मोन्स उतना ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी से। The proper functioning of these hormones plays a major role in the normal physical growth and the development of the children. If these hormone secreting glands cannot function properly, children may suffer from growth defects, obesity, behavioral problems and some other things. जैसे हमारा हार्मोन्स अगर अच्छे ढंग से काम करता है तो हमारा बॉडी अच्छे ढंग से काम करेगा। हार्मोन्स अगर अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं करता है तो हमारा बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि आपका ओबेसिटी हो गया, कुछ ग्रोथ डिफेक्ट्स हो गए, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आल्सो भी होगा और बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकती हैं। नाउ हाँ जल्दी सोना और जल्दी उठना। ऐशु थोड़ा बंद करो उसको। हाँ अर्जुन, ऐशु उठ जाओ, स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, देर मत करो। टॉमी, वहीं रुक जाओ। तुम लोगों को देर हो रही है, नहीं तो बस छूट जाएगी। ओह, हमको देर हो रही है। अर्जुन, ऐशु, चलो नाश्ता करो। नहीं माँ, हमें देर हो रही है। हाँ माँ, हमारी बस छूट जाएगी। हाँ, इसलिए तुम्हें जल्दी उठकर वक्त पे तैयार होना चाहिए। ऐसे तुम लोग नाश्ता करना छूट नहीं सकते। माँ समझो ना। ठीक है, कम से कम एक गिलास दूध तो पी लो। बाय माँ। तुम दोनों पहले अपना दूध खत्म करो। कितनी बार कहा मैंने तुमसे, जल्दी उठ जाओ और नाश्ता खत्म कर लो। ये तो तुम्हारी आदत बन गई है। बाय मॉम। अब क्या करें? फिर से हम देर हो जाएंगे। पहले इसको खत्म करो। काश तुम लोगों ने जल्दी उठने का फायदा समझ लिया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अर्जुन, आयुषु, इस हफ्ते में फिर से तीसरे बार लेट आ रहे हैं। सॉरी मैम, हमारी बस छूट
गई। अच्छा, क्यों छूटी तुम्हारी बस? वैसे हम वक्त पे तैयार नहीं हो पाए। ओह, वक्त पे तुम क्यों तैयार नहीं हो पाए? अर्जुन, हम देर से उठे। ओह, हाँ। कुछ बच्चे इस बात को ध्यान में रखें। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे जल्दी से उठें और तैयार हो जाएं और स्कूल को वक्त पे आ जाएं। समझे? ठीक है, ये आखिरी बार है मैं अंदर आने के लिए मान रही हूँ। देखो, ये फिर से दोहराना मत, समझे? अंदर आ जाओ। धन्यवाद मैम, हम आगे से देर नहीं करेंगे। तो बच्चों, जल्दी सोना और जल्दी उठना हम सबको तंदुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। समझे बच्चों? क्या आप लोगों को पता है, देर से उठने से हम लोगों को भी स्कूल के लिए देर होती थी। और मेरी माँ ने कहा स्कूल के लिए देर होना अच्छी बात नहीं है, और कहा इसलिए जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कभी नहीं छूटी। हाँ, मेरी माँ जल्दी उठने पर मुझे एक बिस्किट देती थी। हाँ, माँ हमेशा जल्दी उठने के लिए कहती है, पर हमने कभी नहीं सुना। तो माँ से क्षमा मांगते हैं और अपनी आदतें बदलेंगे। स्कूल के लिए कभी देर नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, सही बात कहा। तो चलो हाई फाई दो, चिल अप करो। I think so you have enjoyed this video. आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे एक चीज सीखने को मिलता है कि हम लोग को बचपन में याद आता है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हेल्दी एंड वाइज। मतलब हम लोग को समय पर उठना चाहिए और अपने काम को भी अच्छे से करना चाहिए इस टाइम पर। अक्सर हम लोग भी टीचर्स हैं, हम लोग से जानते ही हो हम लोग भी 5 मिनट 10 मिनट लेट ही आते हैं। हम लोग भी अपने सर से सुनते हैं कि सर या मैम आज लेट हुआ, हर दिन तो आपका आदत हो गया लेट आना। तो एक बहुत ही खराब इंप्रेशन लगता है कि हर दिन 5 मिनट या 2 मिनट से लेट। भले ही कोई ना कोई रीजन होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं अगर आज कोई बहाना बना ले तो कल भी कोशिश करते वही बहाना बनाने का, भले ही वो सही न हो। आप लोग बचपन में शायद पढ़े होंगे, सुने होंगे कि एक बच्चा बार-बार बोलता था शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। हर दिन गांव वाले उठ करके देखते जाते थे कि सही में शेर आया है क्या, तो देखते थे कोई शेर नहीं आया तो आज मैं झूठ बोला। इत्तेफाक से एक दिन सच में शेर आ गया और उस दिन वही चीज उसने रिपीट किया कि शेर आ गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं। तो इससे आप ये सीखते हैं कि कभी झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा चीज है जैसे कि अभी हम लोग बोले कि कभी कभी लेट होता है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि सर गाड़ी खराब हो गया या उठने में लेट हो गया, कुछ ना कुछ। तो कोशिश कीजिए आप सुबह जल्दी उठिए और अपने काम को अच्छे से पूरा कीजिए। कोई इसके बारे में आप इस वीडियो से आप क्या लिखते क्या समझे? Yes, sir. Early to bed, early to rise, make a person healthy, wealthy and wise. Definitely, ये प्रोग्राम सभी के लिए, not only for students, टीचर्स के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, एवरीबॉडी, हर किसी के लिए ये
बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें सिर्फ आज ट्रेनिंग से यहीं से ये नहीं लेके जाना है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और अपने फैमिली मेंबर और स्टूडेंट्स पर भी ये इम्प्लीमेंट कराना है ताकि वो अच्छे से अपने काम को टाइम से कर सके, क्योंकि हर एक काम करने का टाइम होता है और टाइम निकलने के बाद जब वो काम किया जाता है दैट इज नॉट गुड। मीन्स हमें वो इन्वायरमेंट बनाना है। हेरिडिटी में तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इन्वायरमेंट तो हम बना सकते हैं। हेरिडिटी में जो कैरेक्टर्स हैं वो हम चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं, बट होंगे या नहीं दे आर नॉट श्योर, बट इन्वायरमेंट को तो हम बना सकते हैं। हमने अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव के साथ साथ बहुत ही टाइट शेड्यूल के साथ बनाना है और यही कहना है उड़ने दो उन्हें खुले मैदानों में, उड़ने दो उन्हें खुले मैदानों में जनाब, उन्हें खुले मैदानों में जनाब, क्योंकि जिंदगी बहुत भगाती है, जिंदगी बहुत भगाती है बचपन गुजर जाने के बाद। थैंक यू। Very clear statement. Now next topic is lifespan development stages or human development stages. Basically, इसमें इस लाइफ में 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को शो किया गया है बच्चे के जन्म से लेकर के बच्चे के जन्म। तो मेनली फर्स्ट स्टेज go back, then that is called as the prenatal stage. The first stage is infancy stage, that is from birth to जन्म से लेकर के 2 साल तक के एज को आप बोलेंगे infancy age. Then early childhood 3 to 5 years, middle and late childhood 6 to 12 years, adolescence 13 to 18 years, early adulthood 19 20 years, middle adulthood 30 to 60 years, and late adulthood 61 and above that death. Now, prenatal period. Prenatal development refers to the process in which a baby develops from a single cell. एक छोटे से सेल से बच्चे का जब डेवलपमेंट आफ्टर कंसेप्शन इनटू एन एम्ब्रियो एंड लेटर इनटू एन फेटस। तो पहले एक सेल से बच्चा छोटा सा सेल उससे किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से उसमें फेटस में चेंज होता है। मेनली 3 phases are delivered here. First one is germinal stage. The first 2 weeks, that is conception, implantation and formation of placenta in mother's womb. Second one is embryonic stage, 2 weeks to 2 months, formation of vital organs and system. And third one is fetal stage, 2 months to birth. 3 stages have been defined here. Germinal stage, इसमें छोटा एक सेल होता है, वो डेवलप होता है 0 to 2 weeks से 3 to 8 weeks में, that is at the embryonic stage. सेल से embryonic stage में जब बच्चा जाता है तो उसमें उसके हेड में 3 पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, सेरिबेलम एंड मेडुला. And third stage is called a fetal stage, 9th week birth time. That is the development of the body organs plus the human brain also. Now, infancy. Maybe आप लोग सुने होंगे इस वर्ड के बारे में, infancy. That is from birth to 2 years. जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो ड्यूरेशन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं infancy. Infancy is the period from birth to 2 years constitutes the infancy stage of life. The infant's basic needs being met by the parents, and this interaction leading to trust and mistrust. Characteristics of infants are trust versus mistrust. Second point, begins to walk and talk up to 3 to 4 words as sentences. Now,
इन्फेंसी जो होता है 0 to 2 years का ड्यूरेशन का समय होता है, जब बच्चे को अपने पेरेंट्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरह वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पर, और वो उस तरह चलना सीखते हैं, क्रैडल करना सीखते हैं, घुटने के बाद सीखते हैं। आप जानते हो आप बर्थ से लेकर के 2 years तक के बीच में, फर्स्ट ईयर से पहले तक में वो घुटने की तरफ चलता है, क्रैडल करता है, और वो अपने पेरेंट्स की सहायता से खड़े होने की कोशिश करता है। और उस साथ स्टार्टिंग में वो 3 से 4 वर्ड्स भी बोलता है, साथ जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है तो वो सेंटेंसेस भी बोलना स्टार्ट करता है, जैसे माँ, पापा। और उस समय इंटेंस केयर, हम लोग को बहुत अच्छे ढंग से बच्चों का देखभाल करना पड़ता है, केयर रखना पड़ता है, कहीं उनको कोशिश करना पड़ता है कि चोट न लग जाए, उनका उसके पीछे 24 घंटे रहना पड़ता है, उसके पीछे 0 to 2 years। Now next is early childhood, 3 to 5 years. Early childhood is basically from the age 3 to 5 years. It is classified into 3 to characteristics: learning to take food, walk and talk. इस समय बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे आपको खाना चलना और बोलना है। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी स्टेजेस, और उसमें बताया जाता है, अक्सर आप देखते हैं कि पेरेंट्स उनको बताते हैं यूरिनल सिस्टम्स में जाना है, बाथरूम में जाना है, कैसे बाथरूम करना है, क्या करना है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अक्सर आप देखते हैं क्लास में छोटे बच्चे जब आते हैं तो वो लोग पैंट नहीं कर देते हैं बाथरूम में जाकर। तो ये चीज गार्जियंस को बच्चों को सिखाना चाहिए सबने भी, और अगर बच्चे स्कूल में आते हैं तो पेरेंट्स को भी देखा करनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड लर्निंग क्लोथिंग स्टाइल, उनको कपड़े पहनने का भी तरीका बताना चाहिए, गेटिंग रेडी टू रीड, पढ़ने के लिए उनको बताना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड लर्निंग टू डेवलप कॉन्सिक्वेंसेस, और डेवलप किया। और अक्सर देखते हैं बच्चों को अगर कुत्ता है बिल्ली आ जाता है तो वो लोग देख कर उसे डरते हैं, तो ये सब चीजों में थोड़ा सिखाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उनसे वो दूर करके रहे, और या तो उसका सामना कैसे करेगा सिचुएशन। मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, दैट 6 to 12 years, 6 से 12 साल तक में होता है। beginning to develop appropriate masculine or the feminine social role। अब अक्सर देखते हैं कि masculine और feminine है, masculine मतलब हुआ मेल पार्ट और feminine हुआ फीमेल। तो इसमें क्या होगा, beginning to develop, इसमें डेवलपमेंट हो जाता है कि गर्ल्स वाले अक्सर आप देखते हो कि क्लासेस में कि गर्ल्स को गर्ल्स की साइड आते हैं, बॉयज को बॉयज की साइड आते हैं। तो जो भी इंटरेक्शंस होता है वो लोग आपस में करते हैं, डेवलप फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग द consequences of a sense of morality and the skill of values ethics for social group and develop concepts necessary for everyday living। वो लोग अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चंस अगर टीचर्स आपको बताते हैं तो वो लोग सवाल पूछते हैं, सर ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ। आप लोग ने स्टार्टिंग स्लाइड में लिखा था क्यूरियोसिटी के बारे में, बच्चों में जागरूकता बहुत ज्यादा है, उनके इंटरेस्ट होता है कि सवाल को पूछने के लिए, जानने के लिए, नए कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो इस समय ये जो स्टेज है मिडिल एंड चाइल्ड जो एज होता है, इसमें क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट। एडोलेसेंस, इसमें स्टेले और ने कहा कि एडोलेसेंस किशोरावस्था एक संघर्ष तूफान की अवस्था होती है जिसमें बहुत सारे आपके बॉडी के ग्रोथ्स होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, इसमें हार्मोनल डिफरेंसेस भी होती हैं, ग्रोथ्स होते हैं। तो एडोलेसेंस डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ दैट ऑकर्स बिटवीन एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये बाल्यावस्था और एडोलेसेंस एडल्टहुड के बीच की अवस्था होती है। एडोलेसेंस जो है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसमें बच्चों का ये मन होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है,
हमारे पीएस के साथ वो रहना चाहेंगे, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहेंगे, हमारे लीडर को जो हेड होता है वो अगर बोल दिया ये काम सही है तो मतलब सही है। सर एक्सक्यूज मी, वो अपने आप को बड़ों की तुल्य समझने लगते हाँ, हैं और हर डिसीजन में वो चाहते हैं हाँ, कि हमारा हर डिसीजन में एक्टिव पार्ट हो और उस एक्टिव पार्ट में डिसीजन देना चाहते हैं और उन्हें उस समय पेरेंट्स के रोक टोक या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत बुरे लगने लगते हैं और यदि उसी टाइम पर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाता है या उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ती जाती है तो पेरेंट्स उनके लिए बहुत हद तक खड़ा हो जाता है और उनका पीयर प्रेशर जो दोस्तों का साथ है वो बहुत अच्छा लगता है। इस समय बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी गाइडलाइंस की प्लस काउंसलिंग की जरूरत होती है। हाउ टू कीप बैलेंस बिटवीन बोथ। पेरेंट्स और बच्चे के बीच यदि बैलेंस नहीं रहेगा तो रिलेशन बहुत हद तक खराब होने के चांसेस हो जाते हैं और इस समय जो होता है बच्चों को मेंटली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड बन के उनके साथ चलना, कोऑपरेट करना, उन्हें समझाना, यही समझदारी होती है। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। प्लीज गिव अ क्लैप। Now, adolescence. What is adolescence? जैसे मैम ने एकदम सही कहा कि वो एक ऐसा स्टेज है जिस समय बच्चे अपने पेरेंट्स की बातों, अगर पेरेंट्स उनके भले के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं तो उनको उनकी बातें बुरी लगती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम पेरेंट्स की बातों को सुने, ना कि सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो हम सोचे, जो हमारे दोस्त सोच रहे हैं वो अच्छा है हमारे लिए। तो adolescence is a period of life when a child reaches reproductive maturity. इसमें puberty stage भी आ जाता है। It is indicated by a number of the changes occurring in the body. इसमें बहुत सारे human developments होते हैं, जैसे कि लड़कियों की आवाज में बदलाव, श्रेणीनेस आता है और वॉइस में जो होगा लाउडनेस जो होगा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इससे मोटापन हो जाता है आवाज़ों में। When changes are seen, that stage is called as puberty. और आप लोग जस्ट मैंने बोला था ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ वो स्टेज है जो मतलब आपको दिखता है कुछ एज के बाद, जैसे छोटे बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो आप लोग देखेंगे उसका कि आवाज में जो होता है मोटापन ज़्यादा आ जाता है, लड़कियों में आ जाता है पतलापन, फिर और भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है स्टेज में। It begins at the age of around 10 and lasts until the age of 19. The period of adolescence is known as the teenage. इसको हम adolescence को teenage भी बोलते हैं। Adolescence undergoes the three primary development stages. That is the early adolescence, that is 10 to 13 years, middle adolescence 14 to 17, and the late adolescence is called as the 18 to 19 years. During this stage, children often start to grow very quickly. They also begin to notice other body changes. They usually start a year after 2 years earlier in girls than boys. और बोला जाता है कि लड़कियों में जो puberty ages होता है वो boys के कंपेरिजन में जल्दी आता है। That is, it can be normal for some changes to start as early as age 8 for females and age 9 for males. This body changes can inspire curiosity and anxiety. Anxiety in some, especially if they do not know what to expect or what is normal. और अक्सर आप देखते हैं कि इसमें बच्चों में अलग सा एक थोड़ा सर्विलिटी महसूस होता है कि आप कभी-कभी से बोलते भी हैं तो आपका आवाज कभी-कभी थोड़ा दूसरे ढंग का निकलता है, तो आप में थोड़ा सा एक सर्विलिटी महसूस होता है जब वो आप एज को अटेंड करते हैं या कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी आपको जब जानना उसमें मालूम तो नहीं रहता है, लेकिन धीरे-धीरे आप बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके क्या-क्या काम है, क्या-क्या होता है, क्यों ये सब चीजें होती हैं, किस हार्मोन्स की सीक्रेट्स होने के चलते होता है, क्या आप में ग्रोथ हो रहा है, क्या आप में डेवलपमेंट हो रहा है। Middle
adolescence, ages 40 to 70. Physical changes from puberty continues during the middle adolescence. At this stage, man becomes interested in relationships. इस एज में अक्सर आप देखते हो कि रिलेशनशिप्स बच्चों में डेवलप होता है कि अपोजिट सेक्सेस में अट्रैक्शन होता है, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है एंड वाइस वर्सा. Middle adolescents have more arguments with their parents. जैसा कि मैम ने कहा कि अक्सर adolescence के समय बच्चों का पेरेंट्स झगड़ा हो जाता है, उनके बातों को नजरअंदाज करते हैं. This struggle for more independence, और उस समय एज में वो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मतलब कि वो अकेला रहना चाहते हैं, मतलब किसी प्रकार का उन पर कोई बर्डन ना, किसी की बातों को वो मानना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो कि वो सही है. लेट एडोलसेंस जो एज है वो 18 to 21 years है एंड न्यू. Late years generally have completed physical development and grown to their full adulthood. They usually have more impulse control by now and maybe better because of it. ये जो एज ऐसा है जिसमें बच्चे खुद के डिसीजंस को लेते हैं, they become more focused on the future. वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हमको अपना भविष्य कैसा बनाना है, and base decisions on their hopes and ideals. Friendship and the relationships become more stable. और अपने फ्रेंडशिप को, दोस्तों को और या रिलेशनशिप को वो कैसे स्टेबल करना चाहते हैं, वो इस स्टेज में वो अच्छे ढंग से सोच सकते हैं. They become more emotional and physically separated from their families. वो कोशिश करते हैं कि हम अकेले रहें और किसी प्रकार का फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व जल्दी ना हो. Now, adulthood. Successful completion of this stage can lead to the comfortable relationship and a sense of the commitment, safety and care within the relationship. Early adulthood first stage is 19 to 29 years. This period from end of the adolescence, that is from approximately 19 years to about 35 years of the age, is generally viewed as the early adulthood. This period in which social rules and relationships are materialized, the young adult becomes fully functional social being, assuming the role of the married family person. इसमें कंप्लीशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है, जो कि 19 to 29 years तक है. Maturations and accept skills and hang out with the same age group. और इस समय अक्सर आप लोग की मैरिज हो जाती है और लाइफ को वो फ्यूचर में कैसे इंडल्ज करें वो चीज सीखा जाता है इस एज में. Middle adulthood, that is 30 to 60, the period of life from around 35 years of the age to the 60 is viewed as the midlife. Muscular strength and the performance of major organs such as the digestive and the circulatory systems deteriorates. Middle adulthood, आप लोग देखते हो कि फिजिकल स्ट्रेंथ आपका होता जाता है, आपका वीक हो जाता है. इस चीज में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्या कमजोर हो जाती है, तो इस चीज में आपका एज बढ़ते बढ़ते आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, डिटोरिएट होते जाएगा. चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंसेस हैज अ मेजर. Now the last stage is, ये last stage है late adulthood और old adulthood. 60 और 60 से जब आप अपने लाइफ को पूरी तरह जी चुके होते हैं, ठीक है, और आप लोग ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के एज तक पहुंच जाते हैं, उसके इसमें मतलब अपनी लाइफ पूरी तरह जी चुके हैं. तो द पीरियड ऑफ द लाइफ फ्रॉम 60 टिल, और उसके बाद आपका रिटायरमेंट भी हो जाता है और आपका वो पेंशन का पैसा मिलता है. जी हाँ, तो द पीरियड ऑफ द लाइफ फ्रॉम द 60 टिल डेथ इज द पीरियड ऑफ ओल्ड एज. However, increased
life expectancy and longer work period, there is a delay onset of the actual feeling of old age. Retirement के अलावा from an active work life, the old people have a cope with many other challenges. उनके पास बहुत सारे challenges हैं, such as their own declining physical fitness. उनका health issues बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, देखते हैं, और अक्सर वो लोग बीमार पड़े रहते हैं. They have death of near one in the family, including possible loss of spouse and loneliness, और अकेलापन भी उनको देखना पड़ता है. These are the 8 stages of child development. Now, domains of human development. There are human development. There are mainly 4 stages of human development. There are the 4 domains of human development. First one, as I have earlier told, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहला डोमेन. सेकंड इज कॉग्निटिव, दिमाग से उसका कैसे विकास होता है. थर्ड इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, दैट इज सोशल डेवलपमेंट. और फोर्थ आप बोलते हैं उसका इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट वन डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन सेकंड वन इज सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ इज मोरल डेवलपमेंट, and 5 is emotional. Now just see this diagram. First one is cognitive. What you are understanding this one? आप इस diagram को देख करके क्या समझ रहे हैं? First one cognitive. Please read. Cognitive, second is language, social and emotional, physical. First one to read this one. First one. Memory, problem solving and reasoning, mathematical thinking, knowledge development, understanding the world around. Now, thank you. Now cognitive. Cognitive means the mental development of the child. That is memory-based problems he used to solve within few minutes or within few seconds. Second one is problem solving and reasoning. The reasoning ability or the mathematical calculations or the thinking power is being developed in this stage. That is the cognitive development. Understand the world around means he can understand whatever the things that is going on around this world. आजकल आसपास क्या हो रहा है, ये सारी घटनाएं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ सकती, साथ साथ सोशल मीडिया आएगी. सेकंड इज लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग. अक्सर देखते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है कि इंग्लिश में बोलते हैं. हम लोग जब क्लास में बोलते हैं तो बहुत बच्चे जूनियर सेक्शन से अक्सर होते हैं, वो लोग को इंग्लिश समझ में आती नहीं. तो हम लोगों को बाइलिंगुअल यूज करना बोला जाता है कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, साथ साथ मदर टंग लैंग्वेज भी यूज कीजिए. दैट इज यहाँ पे आपका हिंदी. तो आप देखते हो कि अगर आप कंटिन्यूअस इंग्लिश में बोलते हैं तो जो बच्चे बैकवर्ड क्लास से आते हैं या जिनको इंग्लिश नहीं आता समझ में, तो वो लोग एक फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा दिखाते हैं कि उसके सामने क्या बोल रहे हैं. लगता है कोई आपका जुबान उसके सामने बोल रहे हैं, कोई फ्रेंच लैंग्वेज का या कोई इटालियन, कुछ भी मतलब ऐसा क्या लैंग्वेज उनके सिर से टेंजेंट बन जाता है. टेंजेंट मतलब जानते हैं, एक सर्कल के ऊपर से जस्ट लाइन टच करता हुआ जब पार होता है, जो कि यहाँ से टच को और सीधा टच होते हुए पार हो जाता है, जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता है. ठीक, तो ये आपका हो गया. तो लैंग्वेज किसी की, जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है. Whatever the front end means the front person is telling you, you have to understand it. Then only you can reply. तभी आप उसको reply कर सकते हैं. Now, language. Language plays a very important role. Communication and speech. Vocabulary. आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है तो उसमें याद करने की क्षमता
ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले वो 4-5 वर्ड्स याद करता है, धीरे धीरे वो और बढ़ता चला जाएगा, फिर वो और बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग डेवलपमेंट। वो पढ़ना लिखना स्टार्ट करेगा और उससे उसकी रीडिंग भी और राइटिंग भी डेवलपमेंट। थर्ड वन इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जितना वो बाहर से अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करेगा या किसी और के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसका सोशल आइडेंटिटी भी बढ़ेगा, उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे और वो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक फीचर पर बदलता जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि बहुत जरूरी है उसके न्यूट्रिशन और हेल्थ पर, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और मोटर से। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक होता है ग्रॉस डेवलपमेंट, एक होता है मोटर डेवलपमेंट। प्लीज मैम कैन यू टेल मी दिस वन? डेवलपमेंट जिससे बॉडी नहीं, जिसे ग्रॉस डेवलपमेंट ये कहेंगे ग्रॉस स्किल एंड मोटर स्किल। अगर ग्रॉस स्किल की बात करें तो ग्रॉस स्किल जिसमें आपका एग्जांपल ले लीजिए हैंड राइटिंग, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हमारा ग्रॉस स्किल हो गया, वो ग्रॉस डेवलपमेंट को डिनोट करता है। एंड अगर हम बात करें मोटर स्किल, तो जैसे हम जंप कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा बॉडी का पार्ट काम कर रहा हो, तो वो हो जाता है मोटर स्किल। ग्रॉस स्किल्स जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉल्स को पकड़ते हैं, कैच करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली अपने दोनों हाथों से कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए। मतलब ज्यादा पार्ट्स को आप उसको यूज कर रहे हैं, उसमें आप ग्रॉस डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं। और जैसे फाइन ब्लॉक में हो गया, और एक जो होगा जैसे कि आप डेकोरेशंस के लिए यूज करते हैं, पेंसिल्स पेन्स यूज करते हैं, तो उसमें आपका फाइन डेवलपमेंट होगा। जब फाइन स्किल्स आप हो सकते हैं, जैसे कितनी अच्छी क्रिएटिविटी आप होते हैं, बारीकी से वो काम किया गया है, कितने अच्छे डेकोरेशन किए गए हैं। जैसे कि आपको किसी में आर्ट में इंटरेस्ट हो या किसी को स्टिचिंग में इंटरेस्ट होता है, तो वो कितनी बारीकी से कामों को करते हैं, तो उसमें फाइन स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। नाउ the teachers are requested to kindly fill these activities whatever that are given right now. Within this 10 minutes, you have to submit this group. The activity work. The 5 questions that are given right now, whatever the slides or presentations you have taught, all questions are given based on growth and development and the developmental domains. Please continue.
Teachers kindly do it fast so that I can ask the questions whatever you have read in the answer.
completed. Kindly going fast so that we can do some activities. Man, please come and collect the papers. Now, ma'am, please. Now, teachers, there are 5 questions in this questionnaire given by our resource person today. One by one, we take the points. What do we understand by child development? Yes, ma'am, can you explain? Child development. What do you understand by child development? Good afternoon, everyone. चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग है कि बच्चों के कॉग्निटिव, फिजिकल और मोटर स्किल्स और उनका इन्वायरमेंटल, इमोशनल सभी तरह से उनका ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, अपने ग्रोइंग स्टेज में हैं, तो उनके क्या सबसे पहले तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे उनकी मेमोरी जो है, उनको याद करने की उनकी जो एबिलिटीज हैं वो बढ़ता है, वो ग्रो होता है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटे बच्चों को हम लोग बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि उनका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इन्हांस हो। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज पे हम लोगों को काम करना होता है एज अ पेरेंट और एज अ टीचर। हम लोग जब उनके लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, उनके वर्केब पे काम करना होता है, उनका वो सारा डेवलपमेंट पूरा होता है बचपन में। सेकंड थर्ड पॉइंट इज सोशल एंड इमोशनल। बच्चे अपने ग्रोइंग स्टेज, अर्ली स्टेज में सोशलाइज होना सीखते हैं। कुछ बच्चे एडल्ट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियरल चेंज देखने को मिलता है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरह के। जैसे अभी एक बार मैम ने बताया ना कि बच्चे अगर पेरेंट्स में किसी तरह की कोई खराब आदत होती है, वो भी बच्चों में आ जाती है, और कोई अच्छी आदत है तो वो भी आती है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, उनका उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, ये सारी चीजें चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। Thank you, ma'am. Thank you for the explanation. Now I request one more teacher to explain why is child development important. My question is, why is child development is important? As we know, child development is directly related to our emotional, physical, social, all types of
डेवलपमेंट जैसा हम जानते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल, वो किसी एक चीज पे नहीं है। लाइक ग्रोथ एक चीज में है कि वो आपका फिजिकली कितना हो रहा है, बट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट हर चीज में देखी जाती है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, वो भी देखा जाता है। फिर उसके बाद उनका प्रोसेस क्या है, वो कर कैसा रहे हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम है तो उन्होंने लास्ट तक कैसा परफॉर्म किया, इस बार कैसा परफॉर्म किया, ये भी मेजर किया जाता है। उनका फिजिकल एक्टिविटी वो भी होता है, उसमें वो भी पार्ट उसका पार्ट होता है। उसके बाद अगर आप बोलें तो बच्चे इंटरैक्ट कितना कर रहे हैं। अगर टीचर से अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो वो जानेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। सिर्फ चुप रह के क्लास में बच्चे सीख नहीं सकते, हमें हर एक बच्चे से पूछना पड़ता है क्या तुम समझे, हाँ हम समझे, मगर तुम क्या समझे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हमसे इंटरैक्ट करें। ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर जैसा था उसके बाद सोशल, बच्चे एज वी नो ह्यूमन आर सोशल एनिमल, तो इसके लिए बच्चों को सोशल बनाना भी जरूरी है कि अगर वो चीजें अपने सामाजिक तौर पर आकर उस स्तर पर आकर सीखेंगे, उस लेवल पर आकर सीखेंगे, तो वो चीजों को ज्यादा तरीके से जान पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक सिंगल आइडिया तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी, बहुत सारी चीज लेंगे, सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जानेंगे और अपने आप को और ज्यादा एलिवेट करेंगे। Thank you. Now the third question will be taken by ma'am. Difference between growth and development. Very good afternoon, everyone. As we know, the difference between growth and development. Growth is physical change, which refers to, I mean, it means biological change, where development is functional and behavioral change, which involve social, emotional, cognitive, moral, and other domains of Thank you. Now, there is another important activity by sir in which teacher will tell us whether this development includes growth also. That means development is a wider dimension, wherein growth, that is physical term or biological term, the growth of a body according to their sex, that is male or female happens. The hormone according to their gender takes place. But development is something beyond growth. That means it includes physical changes along with the psychomotor, social, mental, psychological, cognitive, kinesthetic and other developments that are important for a child. Now I will just mention 2 to 3 activities and you have to recognize whether it is a growth or whether it's development. First one, a child learns to hold a pencil. Is it a development or is it growth? Good. Thank you, teachers. It is development. Next one, the child. Earlier, when the child was young, the knuckles were not very well defined. But as the child grew, the knuckles were clearly defined and the nails started becoming hard. So, is it growth or development? Thank you, teachers. Second one is child can recognize vowel sound words, 3-letter vowel sound words, A, E, I, O, U, cat, rat, man, hen, pen, den, tin, bin, bin, sun, run, dot, god, hot. So is it growth or development? Development. A child can put on the switch of the fan in his room which he was unable to do before. Growth and development both. So now ma'am, you have to, I wanted that answer, growth and development both. Why is it growth and development? Why not just growth? Growth
So two things together. Thank you, ma'am. Thank you. I would like to put the same question. The child tried to put, now can put on the switch of the fan of his room with his wet hands. Growth or development, or what do you consider it? With his wet hands. Yes, thank you. It is a development only, but a wrong development or a wrong notion in the head. It's actually underdevelopment of the mind that is still not telling or giving him the signals that if we turn on the switch of fan with our wet hand, we might Awareness is not there, actual electric shock. awareness. No, awareness is not involved. Thank you, ma'am. That was so nice of you. It is not that the child is not developing. He has understood how to switch on and switch off. By height also he is growing. So, of course, there is physical development. There is growth in his body and his height, which is enabling him to do so. But in this particular case, at the tender age, when the child has just increased and started using his motor skills to do some basic activities, his brain development has not reached to that stage where it tells him or asks him not to do activities which are dangerous or harmful, and to judge between correct and safe activities and incorrect or unsafe activities. So over there, development is there, but that is just motor development, not the cognitive development where the child can ascertain and evaluate between the consequence of the particular act. Thank you, teachers, and thank you, sir, for giving me this opportunity to take the quiz you have conducted. Well explained, ma'am. Now, from this moment, we are going to conclude our today's one day in-house training for my topic. Now, conclusion. At the end, we can say that development plays very important role in the development of personality of an individual. In order to establish an ideal society, parents, teachers, psychologists will have to build up competent and able children who should have the qualities like truthfulness, cooperation, self-control, self-dependence, obedience, and discipline in them. With such children, we can dream of having wide society. Now, we have to develop the self-dependence, self-control in the children so that they can provide better future for our world, and they should be obedience and in a disciplined form so that the society should be a good society and there should be fraternity. There should be a fraternity in the society. Now, with this, I will request my resource person to come here. All of you please stand up. We are going to have national anthem right now. With this word, I conclude my session today. Thank you, sir. Mr. Rajiv Kumar Gupta, our resource person for today's training program, and Mr. Saurav Maharaj, sir, for giving us their views on the importance of physical fitness and child development. Both are the two faces of a single coin. Child development is important, but without physical fitness, a child cannot develop. That means physical along with motor, psychological, cognitive, kinesthetic, all-round development in a child is important. So today's session was a big platform to understand what are the important things, what are the things that play an important role in a child's
development, that is overall, not in just single terms of education or physical, but overall development, which requires good mental health, good physical health, good psychological health, and good social and moral development. Now the first topic was taken by Mr. Saurabh Maharaj sir on importance of physical fitness, and we got to know several terms which we were unaware of, and he very nicely made us understand the role of physical fitness in our life. Sir, we see and we look forward for your inputs into physical fitness, as you yourself are a very fit personality, and that itself motivates us all to get fit for our future. At this young age, we all teachers who are young and fit, they think they are fit, but at some age after 35s or 40s, getting physical fitness is really difficult. And with sir's input, I think all teachers have got that insight and that motivation to do something for fitness for themselves also and for the students. Although the session was for teachers, so how can they inculcate fitness for the students' wellness? But I think it is a session for us teachers also. So thank you, sir, for the wonderful training session. And the second topic, Mr. Rajiv Gupta, sir, he took child development topic, which is why we all are here. Why CBSE has appointed us all teachers. Because our whole and sole motto is child development, without which we are not teachers. The main, primary and major role of a teacher is child development. And it is not just books. It is not just rote learning. It is beyond, way beyond that. Earlier, children used to do rote learning. They were just learning the things. But now, education has changed entirely. And now, teachers are facilitators. They are not teachers, but they are facilitators. And they are guiding students in all facets of life so that they can become ideal students. If not intelligent students, but ideal students in all aspects. So sir has so nicely made us understand this topic of child development and how it is important. And I think it is most important for us all because we are doing CBSE training, in-house training, and CBSE has made it mandatory that we teachers should know each and every aspect of our teaching and education. Now, we all will stand. I once again thank all the teachers for giving their precious time for this wonderful training session. And now I request all the teachers to please stand for the national anthem. This wonderful session, and without your support the session was not possible. So thank you again.